I'll be more than happy to pay my taxes अगर आसपास मेरी चीजें अच्छी हों। I agree, really do, really. आप कितने टैक्सेस पे करेंगे? आप इनकम कमाने के टाइम पे पे कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के टाइम पे जीएसटी पे कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे स्टैंप ड्यूटी दे रहे हैं, फिर कुछ सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं तो एसटीटी पे कर रहे हैं, कमोडिटी खरीद रहे हैं, सीटीटी पे कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, रोड टैक्स पे कर रहे हैं, सारा सरकार को ही तो जा रहा है। अभी जो दिक्कत होती है ना, इट्स नॉट अबाउट कि टैक्सेस क्यों देने पड़ रहे हैं, इट्स अबाउट अगर मैं टैक्सेस दे रहा हूँ तो भी मेरे को मिल क्यों नहीं रही चीजें। What is your take on removing income tax completely? थोड़ा ना ये रिस्की एरिया है। You're so excited to share. CA Sahil Jain. Sahil Jain. Sahil Jain. बहुत ही पॉपुलर डिजिटल पर्सनालिटी, Educator. Content creator. Secured an All India rank 42. With 406,000 subscribers on YouTube. Continues to make significant contributions to the field of taxation. ऐसी कौन सी practices हो सकती हैं जो हमें ensure कर देंगे, हमें कभी notice नहीं आएगा? अगर कल को जाके तुमने गलती करी तो हम पकड़ेंगे, टैक्सेस निकलवाएंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी सब निकलवाएंगे। Do you suggest people to go to UAE if they want to save on taxes? आपने ये सुना होगा दुबई के अंदर इनकम टैक्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है। जो एविएशन कर रहे होते हैं उनके साथ करती है सरकार और कह के करती है। कैसे करती है एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तुमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख में खरीदी है, अरे बहुत बढ़िया हो गया, तो 80 लाख का फायदा हो गया तुम्हें, 80 लाख की इनकम आ गई है, अब तुम उसको इनकम की तरह दिखाओ। Wow. और ये 80 लाख पे तुम भी टैक्सेस दो। तो दोनों लोगों से दो लोगों को पकड़ेंगे, आपको भी पकड़ेंगे, मेरे को भी पकड़ेंगे, और ये बिल्कुल डबल टैक्सेशन है। सरकार कहती है हम करेंगे, क्यों? क्योंकि तुम एक आम आदमी तो महसूस करता है उस चीज को, और तकलीफ है लोगों की लाइफ में इस चीज को लेके। Genuinely. को लगता है कोशिश भी की जाएगी रिजॉल्व करने की। देखिए Today, I'm in conversation with CA Sahil Jain. Now, before I get into the formal description of the guy, let me tell you, he's one of the best friends I have today. He's really close to me. And actually, a quick insight, this episode was actually the first episode that I ever recorded of this series. Yes, because I was comfortable with him, I reached out to him and I asked him to do this episode with me, and he was really nice. He accepted the proposal, and here we are. We finished filming it. It went so well that my editors really had a great time editing this one. And they told me later on, I received this feedback that they learned so much about taxation and so much about India's economy and how government is dealing with people with various issues that are there in our taxation system, the flaws and what people like and what people hate. We've discussed everything. So let me quickly tell you about him. So his name is CA Sahil Jain, as I told you. He holds All India rank in CA course. Yes, he's a rank holder. He qualified CA at the age of 22, one of the youngest that we've got in a country. He's one of those few tax consultants who, along with consulting, is also actively training CAs, tax officers, and lawyers in taxation laws. He knows the latest changes in tax laws. He knows the law practically and knows how people try and evade taxes. And since he's so well versed with law and especially taxation law, he knows how the law curbs all those attempts of people. He roped in as chief educator and category leader by a unicorn startup by its founders. Okay, I'm talking about an academy here. Make sure you watch this episode right till the end because you're going to learn so much about taxation. Probably you'll be in a position to question your CA the next time he tells you, इतना टैक्स जमा कराना है. You'll be able to study your income tax return and you'll be able to plan your taxes very well. Please share it with people you care about. Share it with your family, your father, your father-in-law, your mother, mother-in-law, your sister, sister-in-law, your friends, anybody who is anywhere connected to taxation. This episode for each and every one of you. So let's hop into it. And of course, if you have any query, the description has all the details, the contact details of Sahil. You can reach out to him and he'll be more than willing and upcoming in answering to all your queries. Thank you very much. Let's get into the episode now. Welcome, Sahil. थैंक यू। I am very honored. Thank you for accepting the offer to come on this podcast. ऑलवेज अ प्लेजर। And it's just that कि शायद थोड़ी देर में हमारा जो एक्चुअल बॉन्ड है वो निकल के आएगा, बट इनिशियली मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको कंट्रोल में रखने की. एंड लेट्स जस्ट डिस्कस स्टफ, इम्पोर्टेंट स्टफ. डन, ऑन इट। ओके, सो हाँ जी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट, तो शुरुआत में आपको क्या लगता है
किस स्टेज पे बिजनेस के किसी इंसान को इनकम टैक्स या जीएसटी के बारे में परवाह करना, टेंशन लेना स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त 36 चीजें और होती हैं। करेक्ट। तो आपके हिसाब से वो कौन सा मोमेंट है जब एक इंसान के लिए इट्स वेरी रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट कि वो टैक्सेशन के बारे में सोचना शुरू कर दे, नहीं तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है? सो बेसिकली अगर हम पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, कंसिडरिंग द मेजॉरिटी बीइंग द एम्प्लॉइज और द बिजनेसेस, तो एम्प्लॉइज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मोस्टली द कंप्लायंसेस आर अपॉन द एम्प्लॉयर। जीएसटी के अंदर देयर इज नो कंप्लायंस दैट द एम्प्लॉइज हैव टू डू। एंड इफ यू टॉक अबाउट इनकम टैक्स लॉज, तो उसके अंदर भी इट इज़ द एम्प्लॉयर्स हु आर सपोज टू डिडक्ट टीडीएस। एम्प्लॉइज को मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं करना होता अदर देन द रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। तो एम्प्लॉइज के लिए तो इट इज़ प्रीटी ईजी। व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेसेस, तो उसमें आप मान सकते हैं दैट इनकम टैक्स लॉ में रफली आप मान के चलिए 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम जब होने लग जाए, दिखने लग जाए कि एनुअली इससे ज़्यादा की इनकम हो सकती है, दैट इज़ व्हेन यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग अप कि क्या क्या करना है। आईटी लॉ रिक्वायर्स रिटर्न फाइल करनी होगी, फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है डिपेंडिंग ऑन क्या पेमेंट्स कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हेन यू शुड स्टार्ट लुकिंग अप द लॉ कि आईटी लॉ के अंदर क्या क्या कंटेंट है। जीएसटी लॉ के अंदर अगेन सो देयर इज नंबर्स दैट द पीपल नो। 20 लाख की फिगर शायद आपने सुनी होगी। 20 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू आने लग जाता है, दैट इज व्हेन यू नीड टू एक्सप्लोर कि नंबर लेना है 20 नहीं लाख लेना का है। एनुअली। करेक्ट, 20 लाख एनुअली एक नंबर लोगों के दिमाग में होता है। दैट इज अगेन अ मिथ बिकॉज देयर इज 3 नंबर्स जो मार्केट के अंदर हैं। इट इज आइदर 10 lakh फॉर सर्टन पीपल, 20 lakh फॉर सर्टन पीपल एंड 40 lakh फॉर अदर्स। And this is also again not a single number that you need to keep in your mind. There can be situations जहाँ पे there's no revenue that you people have right now, like you've just started, 2 लाख का revenue हुआ है, but something is triggering that requirement कि आपको नंबर लेना पड़ेगा. For example, you've taken some services, taken some goods, उसमें reverse charge का कोई concept आ गया है. The law requires कि आपको नंबर there and then लेना पड़ेगा, and आपकी services, आपके goods वहीं से taxable होने चालू हो सकते हैं, even if you've not achieved that particular revenue, 40 lakh, 20 lakh, 10 lakh, whatever it is. Again, I would say that the safe limit for you is revenue. अगर आप बात करेंगे तो 10 लाख के बियॉन्ड जाते ही स्टार्ट लुकिंग अप कि जीएसटी के अंदर आप कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एंड इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होते ही आईटी लॉ के अंदर चेक करना शुरू करिए कि क्या क्या कंप्लायंसेस हैं जो कि आपके बिजनेस के अंदर ट्रिगर हो सकती हैं। 2.5 लाख 10 लाख दोनों एनुअल फिगर्स हैं करेक्ट, जो हम दोनों बात एनुअल कर हैं रहे हैं। एंड 10 लाख इज द रेवेन्यू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। 2.5 लाख इज द इनकम, दोनों में फर्क है। ओके, मैं समझ सकती हूँ आप जो कह रहे हैं, बट एक जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट एक कॉमन मैन को कैसे समझ में आएगा इनकम और रेवेन्यू का फर्क? सो लेट्स से मैंने 10 लाख के गुड्स बेचे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, तो 10 लाख जो मैंने बिलिंग करी है, जो मेरे को पेमेंट करी जा रही है, दैट इज व्हाट माय रेवेन्यू इज। एंड इनकम इज बेसिकली मैंने 10 लाख के गुड्स बेचने के लिए खर्चा भी इनकर करा होगा, गुड्स को खरीदा भी होगा। लेट्स से 6 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, तो 4 लाख की इनकम आई है। तो 10 लाख इज व्हाट द रेवेन्यू इज एंड 4 लाख इज व्हाट द इनकम इज। दोनों लॉस के अंदर अलग अलग चीजें ट्रिगर हो रही होती हैं। जीएसटी इज व्हाट ट्रिगर्स योर और व्हाट रादर लुक्स एट योर रेवेन्यू, उस पर्सपेक्टिव से जीएसटी लगाता है। इनकम टैक्स में दे आर मोर फोकस्ड ऑन द इनकम। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। अगर किसी इंसान को बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लेट्स से कि कोई 1 महीने के बाद अब उसका वो फिगर थोड़ा बहुत 2 लाख वाला टच होने लग गया है, वो कोई एक रिसोर्स है जहां से पढ़ सकता है सिंपल तरीके से कि कहाँ से इनकम टैक्स में मुझे क्या क्या करना है, जीएसटी में मुझे क्या क्या करना है? कोई ऐसी रिसोर्सेज हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड कर पाए? क्योंकि भाई इनकम टैक्स लॉ तो उठा के नहीं पढ़ सकते या जीएसटी लॉ तो नहीं देख सकते, तो वो हम क्या देख सकते हैं? कौन सी ऐसी वेबसाइट हो सकती है या कुछ हो सकता है या किताब? इसके लिए देखिए गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल्स निकाल रखे हैं। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे, जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे, दोनों के अंदर गवर्नमेंट कीप्स ऑन टेलिंग यू ड्यू डेट्स, क्या क्या ड्यू डेट्स आ रही हैं, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, रिटर्न्स फाइल करने के लिए, टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने के लिए। बट अगेन फॉर अ लेमैन टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें उनके ऊपर अप्लाई होती हैं, टीडीएस है क्या भला बिजनेस चालू करते ही, इवन जस्ट ट्राइंग टू गेट टू नो दैट, वो ही बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो फॉर मी टू बी एबल टू कोट अ सिंगल सोर्स कि यहाँ जाके पता कर लीजिए, आपके सारे सोर्सेज आपको क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या करना है क्लियर हो जाएगा, दैट्स नॉट very practical. But for somebody who's willing to invest time into this, they can get to know about it थोड़ा रीड करके कि क्या क्या compliances किस किस रेवेन्यू पे ट्रिगर हो रही होती हैं। Will it be a safe thing to say कि आप सीधे किसी सीए को फोन घुमा दीजिए at that point? You can, but स्टार्टिंग के रेवेन्यूज में ना आप ये चीज़ पाएंगे that the people are very reluctant to pay a consultant any fee for any sort of work. स्टार्टिंग में एक मेंटालिटी होती है जब तक रेवेन्यू बड़ा नहीं हो जाता, ज़्यादा नहीं हो जाता, कि खुद ही संभाल लेते हैं, खुद ही देख लेंगे। इट इज़ ओनली व्हेन यू
end up having more and more assets, आप थोड़ी wealth build करने लग जाते हो, that is when compliances start troubling you a little. खोने का डर बढ़ जाता है। खोने का डर बढ़ने लग जाता है कि खोने के लिए चीजें हैं। हाँ, true. And that is when you get skeptical कि यार अब ये penalties अगर लगाने लग गए, अब ये मेरे को पनिश करने लग गए, फाइन्स लगाने लग गए, तो सारी एसेट्स एक बार में गायब हो सकती हैं। दैट इज व्हेन पीपल स्टार्ट लुकिंग अप प्रोएक्टिवली की कंप्लायंसेस करने लग जाएं। पहले थोड़े रिएक्टिव होते हैं कि नोटिस आएंगे तो देखेंगे, अभी कुछ नहीं करना। सो ओके दैट हैपेंस। क्या लोग खुद से टैक्स कंप्लायंस कर सकते हैं या एक सीए के पास जाना ही एक अकेला ऑप्शन है? आपके हिसाब से क्या अप्रोच एक इंसान को, एम्प्लॉई या एक बिजनेसमैन को फॉलो करनी चाहिए? मैंने आपको इसका आंसर एक एनालॉजी के साथ देता हूँ। जी। आपने अभी ये अपना अपार्टमेंट बिल्ड करवाया है जी। एसीज हम नॉर्मली क्या करते हैं, गर्मियों के अंदर यूज करते हैं, सर्दियों के अंदर यूज नहीं करते। एंड जैसे आपकी गर्मियाँ आती है उनकी क्लीनिंग करवाते हैं। करेक्ट। उसकी जो क्लीनिंग हम करवाते हैं क्या हम खुद नहीं कर सकते? इज इट समथिंग व्हिच इज वेरी टेक्निकल? कोई रॉकेट साइंस है? नहीं धोना होता नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, पीसीबी के ऊपर पानी नहीं डालना है, वेंट्स के ऊपर डालना है, यहाँ डालना है, वहाँ डालना है। स्टिल वी डोंट डू इट। क्यों नहीं करते हैं? 2 रीजंस होते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है, हमें या तो पता ही नहीं है कि भाई पीसीबी क्या है, कहाँ पानी डालना है, कहाँ नहीं डालना है, टेक्निकलिटीज नहीं पता। तो हम क्या सोचते हैं, ठीक है यार 500 रुपए देंगे, उस इंसान को टेक्निकली पता है मेरा 50,000 का एसी है, खराब नहीं हो जाए, उसको पे करके करवा लो ये काम। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। हम कहते हैं कि भाई मैं 2 घंटे इस चीज में नहीं लगा सकता, 500 रुपए दो, वो इंसान आके ढंग से काम करके चले जाएगा। सेम इज द केस विद एनी प्रोफेशनल। सीएस जो आपके लिए काम कर रहे हैं, क्या आप खुद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सीए की जरूरत है ही है? बिल्कुल नहीं है। बट सीएस को क्यों पे करा चाहता है? टैक्सेशन उन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ी है एंड उनकी जो जो अमेंडमेंट सारी होती है वो भी डेली पढ़ रहे होते हैं। नाउ अपडेटेड रहते हैं वो। उनकी सर्विसेज आपको नहीं अवेल करनी है। 2 तरीके हैं। पहले तो क्या करना पड़ेगा, खुद टाइम लगाना पड़ेगा, सीखने के लिए लॉ पढ़ना पड़ेगा, जी। पढ़िए, अमेंड होते रहिए, कोई जरूरत नहीं है सीएस की, मेहनत करनी पड़ेगी वही। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई या तो वो टेक्निकलिटी में मैं जाना नहीं चाहता या जाने का टाइम नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे काम है, मेरे को बिजनेस अपना संभालना है, मैं ये थोड़ी पढ़ता रहूंगा डेली टैक्सेशन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। हाँ। तो इन दोनों सिनेरियोज में यू विल लुक फॉर अ सीए जो टेक्निकली साउंड होगा, आपकी कंप्लायंसेस को देख लेगा, कर लेगा एंड यू विल पे एन अमाउंट फॉर इट। द अमाउंट कैन वेरी, बट आर द सर्विसेज मैंडेटरी फॉर यू टू अवेल? नो। बट हेल्प करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आई हैव अ फनी थिंग टू से हियर। मैं सीए हूँ, मैंने सीए हायर किया हुआ है। Because for the same reason, of course there are 2 things. First of all, मैं actively इस profession में taxation में अब जुड़ी हुई नहीं हूँ, right? I have a separate thing that I do. I'm mostly on cameras, shooting my content because that's what I do now. I'm educating people using my cameras, right? मेरे पास updated रहने का वक्त वाकई में नहीं है, सच है ये बात। और अपडेटेड नहीं रह सकती, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं श्योर कैसे हूँ कि अगर मैंने कुछ डिसाइड किया, ठीक है एक बार को मैं वो स्टांस ले सकती हूँ, मैं सीए हूँ, मैं ईगो में आके नहीं मैं क्यों सीए हार करूँ। बट देन वो वाकई में बहुत काम करते हैं मेरे लिए, बहुत कुछ है जो वो संभाल रहे हैं मेरे लिए। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैं खुद करूँ वो आज के डेट में अपने लिए। तो येस ऑफ कोर्स एज अ सीए आई हैव हायर्ड अनदर सीए and he is doing my taxation, income tax, GST, everything. So मेरा भी कहना यही है इस पे कि भाई जिस चीज़ की समझ नहीं है उसमें बेहतर है कि जो एक्सपर्ट है उसकी सर्विस हायर करो। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है आपका ट्रस्ट होना चाहिए उस बंदे पे, बंदा ढंग का होना चाहिए। आपको या तो अपना फैमिली सीए आपका हो सकता है, ज़्यादातर केसेस में आई गेस लोग यही करते हैं, राइट? तो आप लाइक यू ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी। And जहाँ तक मुझे पता है, since you're a friend, you don't have CAs in your family. Not a lot of them, correct. So how did you, let's just call it a business, how did you build your consultancy business, which I'm pretty sure is going really well? I think for us CAs जिनको हमारे फील्ड के बारे में आपको ये वो पता ही होगा, मार्केटिंग हम नहीं कर सकते हैं। इवन आवर प्रोफेशनल एथिक्स डोंट अलाउ दैट वी मार्केट आवर सर्विसेज, दैट वी से कि भाई ये सर्विसेज। हाँ, सो फॉर प्रोफेशनल्स लाइक सीएस, लॉयर्स, वी आर नॉट सपोज्ड टू मार्केट आवर सर्विसेज। वी कांट से कि ये रिटर्न फाइल करवा लो, इतने में करवा लो, उतने में करवा लो, इवन इफ इट हैपेंस। बट लोग करते हैं, पीपल डू इट, बट सीएस नहीं मिलेंगे आपको करते हुए। इट विल बी सम अदर प्रोफेशनल तरीके से। हाँ, तो वो चीज़ हम करते नहीं है। तो हमारा ऑर्गेनिकली ग्रो करना इज द ओनली वे दैट वी प्रोबेबली चूज टू डू इट। तो मेरे साथ भी वैसे ही रहा। आई स्टार्टेड फाइलिंग रिटर्न्स एंड इट डिडंट इवन स्टार्ट विद फाइलिंग रिटर्न्स, स्टार्टेड विद प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी ऑन वेरियस थिंग्स। आप एक बार सीए बनते हैं तो पीपल
ऑटोमेटिकली स्टार्ट लुकिंग अप टू यू कि ये मेरे टैक्सेस जो है उनको कहीं ना कहीं सॉर्ट करेगा, कहीं भी फंसेंगे, जस्ट द फैक्ट दैट यू आर अ सीए, इवन इफ यू आर नॉट अ टैक्स कंसल्टेंट, इट इज ऑटोमेटिकली अज्यूम कि ये टैक्सेस के बारे में कुछ तो बता ही देगा, सही कर ही देगा. सो दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स. आप उनकी चीजें सॉल्व करने लग जाते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से वो चीजें फैलने लग जाती हैं. यू स्टार्ट हैविंग गुड क्लाइंट्स एंड वो एक एक करके बिल्डअप होने लग जाता है. सो दैट इज हाउ इट हैपेंड फॉर मी ऑल्सो. आई थिंक वो एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं था. तो ये बात मैं चाहती हूँ कि आप क्लियर कर दो. कोई भी सीए बनता है, पूरी फैमिली को लगने लगता है मेरा हाथ तो सॉर्ट हो गया भाई, ये बंदा मेरे टैक्सेस फाइल कर देगा. बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट पीपल फाइंड आउट कि हर सीए, जैसे डॉक्टर्स के लिए आपने एग्जांपल थोड़ी देर पहले वी वर टॉकिंग, यू गेव दिस एग्जांपल कि हड्डी का डॉक्टर बालों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, करेक्ट. आइज का डॉक्टर पेट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता. सिमिलरली हर सीए टैक्सेशन की प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व नहीं कर सकता. करेक्ट. यू नीड टू फाइंड आउट द गाय जो टैक्सेशन में डील कर रहा हो, जो उस चीज का एक्सपर्ट हो. आइडियली. सो अगेन सोसाइटी के अंदर ये जो फैमिली वाली कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं आप, दैट इज व्हाट पीपल सीक व्हेन दे डोंट वांट टू पे फॉर इट. या एंड आई पर्सनली फील दैट पे नहीं करने में सबसे वाइज तरीका क्या है, खुद पढ़ के करिए, कुछ ढंग का करेंगे. आप पे करे बिना जहाँ पे भी काम करवाएंगे, चाहे रिलेटिव से करवा रहे हैं, चाहे किसी और इंसान से करवा रहे हैं, लेट्स से यू आर पेइंग $500 फॉर फाइलिंग योर रिटर्न और व्हाटएवर इट इज, दैट पर्सन इज लीस्ट बॉदर्ड कि आपके कल को नोटिस आएँ, कल को रेड पड़े, कल को समन्स आएँ. क्यों? उसको कुछ नहीं करना है. उसने अपने दिमाग के अंदर एक टाइमलाइन सोच रखी है कि 5 मिनट के अंदर ये रिटर्न फाइल करनी है. वो 5 मिनट के अंदर ही करेगा, चाहे केस कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कितना ही टाइम रिक्वायर क्यों ना कर रहा हो. एक एक रिटर्न फाइल करने के टाइम पे एवरी क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है. डिपार्टमेंट जानना चाह रहा है कि ये इंसान क्या एविएशन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. जी. उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता है. कल को नोटिस आएंगे, उसको और काम मिलेगा, और रादर वो उस काम को देख भी नहीं रहा होगा, वो उसकी कॉम्पिटेंसी में नहीं आ रहा है. उसने रैंडम कोई डिग्री ले रखी है, नॉट इवन अ सीए डिग्री, वो 500 रुपए में रिटर्न फाइल करके निकल जाता है. कल को नोटिस आएंगे, आप इधर उधर भागेंगे. जी. तो व्हाट आई वुड रादर से इज, इट्स नॉट अबाउट द मनी कि कितना पे कर रहे हैं. यू शुड हैव अ पर्सन जो आपको गाइड करे रिटर्न्स फाइल करने के टाइम पे, और नॉट जस्ट फाइलिंग रिटर्न्स, व्हाइल गिविंग यू कंसल्टेंसी एज वेल, कि ये आपका केस है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट द लॉ सेज. ही ट्राइज टू टेल यू कि लॉ क्या रिक्वायर कर रहा है आपको, क्या वो करवा रहा है आपसे, इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग कि ये ही करना है और ऐसे ही करना है. क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो मुझसे मत पूछो, वो मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है. नहीं, डोंट लेट हिम डू दैट. अदरवाइज कल को जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको फेस करने पड़ेंगे. एंड वो फेस करवाने के टाइम पे रादर अगर आप उनके पास जाते हैं कि ये दिक्कतें आ गई हैं, तो इट्स अगेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, व्हिच इज नॉट गुड फॉर यू. तो क्या ये सेफ टू से है कि आप जब अपने सीए के पास जाएं अपनी इनकम डिस्कस करने के लिए, आप प्रॉपर एक डायरी पेन के साथ जाएं, या एटलीस्ट फोन में एक ऐप खोल के मेक योर नोट्स एंड अंडरस्टैंड करिए एक एक चीज को, एक एक चीज पे सवाल पूछिए, और जब वो आपको कुछ बताएं उसको लिखिए और घर जाके पढ़िए. बिल्कुल. ओवर द इयर्स आपका नॉलेज बढ़ जाएगा. 4-5 साल में आप बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि मोरल ज्यादातर लोगों की स्ट्रीम ऑफ इनकम तो सेम रहती है. आपको पता होगा आप कौन से सेक्शंस के साथ डील कर रहे हो, किस टाइप की चीजें आप पे अप्लाई हो सकती हैं, कौन कौन से सेक्शंस आप पे लग सकते हैं, आपको उनकी नॉलेज बढ़ जाएगी. करेक्ट. सो मेरा भी यही पॉइंट रहता है क्लाइंट्स के साथ. लोगों को ना लॉ देख के लगता है इतना बड़ा लॉ है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, कौन पढ़ेगा, क्या क्या लॉ के अंदर कंटेंट है. लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है कि लोग समझ पाएं. लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है, बट माय होल पॉइंट इज आपको पूरी बुक पढ़ने के लिए कहा किसने है. आप 4 टाइप की इनकम्स कमा रहे हैं, 2 टाइप की इनकम्स कमा रहे हैं, पूरी लाइफ यही कमाएंगे. 40 साल तक, 50 साल तक एक ही टाइप की इनकम कमाएंगे. लॉ भी सिमिलर ही रहता है उसके ऊपर जो अप्लाई होता है. जी. तो लोग क्या करते हैं, 2 स्टांसेस लेते हैं. या तो ये होगा कि मैं पूरा लॉ पढूं 500 घंटे लगा के, या बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा. मेरा सीए या फिर मेरा जो भी कंसल्टेंट है वो जो रिटर्न फाइल करता रहेगा, जो कहता रहेगा मैं करता रहूंगा. क्यों इतने एक्सट्रीम स्टांसेस लेने क्यों हैं? एक मिड का रास्ता निकालो, बीच का रास्ता पकड़ो. 100 इनकम पे सरकार ने बता रखा है हर इनकम की टैक्सेशन कैसे होती है. आप 2 कमा रहे हैं, उन 2 के बारे में पढ़ लो. कितना मुश्किल है. जी. मैं रेजिडेंट हूँ. मैं मोस्टली इंडिया के जितने लोग निकल के आते हैं वो रेजिडेंट रहते हैं इंडिया के अंदर. ROR निकल के आते हैं, RNOR, NR, ये भी कॉन्सेप्ट है, लोग होते नहीं है. NR को पर्टेन करने वाले जितने प्रोविजंस हैं, NR की टैक्सेशन है, एडवांस रूलिंग है, नॉन रेजिडेंट, करेक्ट, बाहर के लोग जो होते हैं, जो बेसिकली इंडिया में ज्यादा नहीं रहते हैं, जी, उनके रूल्स क्यों पढ़ने हैं. आधी से ज्यादा किताब यहाँ पे खत्म हो जाती है. फिर इनकम्स इंडिया की स्ट्रीमलाइन करेंगी कि मैं ये कमा रहा हूँ, आधी किताब यहाँ पे खत्म हो जाती है. तो पढ़ने के लिए कुछ रहता नहीं है. और अगर वो पढ़ लिया आपने तो पूरी जिंदगी कॉन्फिडेंस के साथ सारी की सारी असेसमेंट्स कर रहे होंगे, रिटर्न्स फर्निश कर रहे होंगे. वो करवा सकते हैं किसी और से काम, बट आइडिया तो होगा ना कि करना क्या है. समझना, मतलब अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो इसका मतलब ही नहीं भाई हमने तुम पे छोड़ दिया. हाँ, जो बोलोगे खा लेंगे. डॉक्टर दवाई देता है तो पूछते हो ना ये क्या करेगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है. तो अपने सीए से, अपने कंसल्टेंट से
अपनी बीमारी को भी पढ़ते हो आप, हाँ समझते हो। हाँ, हाँ। क्योंकि आपकी बॉडी में जा रही है, फर्क आपको कहीं ना कहीं क्रिएट करेगी, वो हार्म करेगी तो आपको करेगी, फायदा करेगी आपको करेगी। सिमिलरली कंसल्टेंट जो कह रहा है सिर्फ मानना नहीं है, जानना है कि ये क्यों है, लॉ के अंदर कहाँ कहा गया है। मेरे को एक ऐसा इंस्टेंस याद है, मुझे याद है एक बंदा मेरे पास एक बार आया था और मुझे ही वाज सो डिस्टर्ब्ड इमोशनली। उसकी प्रॉब्लम पता है क्या थी? उसके टैक्स कंसल्टेंट ने उसके पासवर्ड्स चेंज कर दिए थे। ओके, ये चीजें होती हैं, है ना? बिल्कुल होती हैं। देखिए, कंसल्टेंट्स आपको समझने पड़ेंगे हायर करने के बाद कि उनकी मेंटालिटी कैसे स्टेम कर रही है, वो कैसे आपको बेसिकली उनके बिलेबल्स जो निकल के आते हैं वो पैसे कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन दो तरीके होते हैं काम करने के। पहला तरीका है कि भाई क्लाइंट ने अगर कुछ पूछा है, उनको कोई ना कोई डाउट आ रहा है, तो उनको मैं एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पे क्या होगा। दूसरा तरीका ये है कि उनको मैं बिल्कुल ही कट ऑफ कर दूं, उनका बस काम कर दूं मैं, पर मुझे चाहिए ये बिलेबल मेरा हर साल बनता रहे। हाँ। और वो हर साल ऐसे ही बनेगा कि मैं उनको बताऊं नहीं कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा इंसान अगर आपने पकड़ लिया है और ऐसा कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जस्ट गेट आउट ऑफ इट। आप देखेंगे आपके फादर ने, मदर ने जो भी कंसल्टेशन अवेल करी होंगी, बहुत सालों तक एक ही इंसान से काम करवा रहे होंगे, जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, जिंदगी भर जिंदगी भर के लिए जुड़ Same. जाते हैं। तो जिंदगी भर के लिए किसी इंसान के साथ अगर जुड़ना है तो थोड़े ढंग के इंसान के साथ जुड़ें, जिनको इनकम्स के बारे में बताने के टाइम पे कोई डाउट ना हो, जानने के टाइम पे ये ना हो कि ये इंसान बताना नहीं चाह रहा है, छुपा रहा है चीजें, आप हाँ, हमेशा ही डार्क में हैं, हम्म, और कल को नोटिस के टाइम पे पता चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। हाँ। तो पासवर्ड चेंज करना तो खैर डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है। तो ओटीपी वगैरह का सिस्टम तो बाद में आया, नहीं? पहले पासवर्ड चेंज हो जाते थे ना? हाँ, अभी भी वो मतलब ले सकते हैं कि एक्सेस अपने पास रखें, पासवर्ड्स आपको नहीं बताएं, बट पासवर्ड देन खुद यू कैन रखें। चेंज इट यूजिंग ओटीपी। यू कैन, बट उतना एफर्ट भी डालना पड़ेगा ना खुद से कॉन्शियसली, कि हाँ मैं देखना चाह रहा हूँ कि रिटर्न के अंदर क्या हो रहा है। आपने वेबसाइट बिल्कुल ही ढूंढनी पड़ेगी, आपने बिल्कुल ही उस इंसान पे छोड़ दिया कि जो कर रहा है सही कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। रेजिस्टेंस फील होगी। हाँ। एक ऐसी चीज में आप हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो जो बिल्कुल नहीं किया कभी भी आपने। करेक्ट। करेक्ट, ठीक है, अंडरस्टूड। आप कोई ऐसा इंस्टेंस याद कर पा रहे हो कि जहां पे किसी के टैक्स की नॉलेज ने उसको बचा लिया लीगली? कोई इंटरेस्टिंग केस, एनी स्टडी? काफी सारी। एक बताता हूँ मैं आपको। सो नॉर्मली ना हमारे दिमाग में एक फंडामेंटली एक कॉन्सेप्ट बैठा होता है कि जो हम बिजनेस के लिए इनकर कर रहे हैं वो खर्चा हम अवेल कर सकते हैं। जो पर्सनली इनकर करे हैं, पर्सनल लाइफ से लेना देना है, बिजनेस का नहीं है, वो नहीं अवेल कर सकते। पर ये डिस्टिंक्शन हमें नहीं पता होती क्या पर्सनल है क्या बिजनेस है। एग्जाम्पल देता हूँ, आज के टाइम पे काफ़ी चलता है, व्लॉगिंग का बिजनेस है एक। आप ट्रैवल कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम्स आती हैं, अगर चल जाए तो। तो देयर वाज अ ब्लॉगर एंड योर ओन क्लाइंट? हाँ, तो शी वाज अर्निंग इन लैक्स इनिशियली, अब करोड़ में आ रही है उनकी फिगर। ओह वाओ, ओके। तो शी इज रिपोर्टिंग ऑल हर इनकम्स। उनको जो टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, कोलैबोरेशन के अंदर जीएसटी देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, सारी चीज़ें वो दे रही हैं। एंड शी हैज़ नो क्लू दैट उन्होंने जो गाड़ी खरीदी है, वो जो ट्रैवल कर रही हैं, वो कहीं पे रह रही हैं, खाना पीना खा रही हैं, एवरीथिंग इज क्लेमेबल बिकॉज उनका प्राइमरी काम क्या है? व्लॉगिंग करना है, ट्रैवल करना है। सो दैट इज अ बिजनेस इनकम पर से। करेक्ट। तो जब इनकम आप सारी की सारी दिखा रहे हैं, तो खर्चे क्यों नहीं क्लेम कर रहे? जब जेन्युइन खर्चे हैं, किस एब्सोल्युटली। चीज का डर बैठा हुआ है दिमाग के अंदर? ये क्यों लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे पर्सनल खर्चे हैं? आपने चलिए वहां पे थोड़ी बहुत मस्ती करी है, एंजॉय करा है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। आपके लिए मेन बिजनेस इनकम वहां से आ रही है, तो क्लेम करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इसमें नहीं पकड़ रही है। बट इफ आई ऑन दी अदर हैंड स्टार्ट क्लेमिंग माई ट्रैवल एक्सपेंसेस, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए पर्सनल खर्चा है। बेसिक एक फंडा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा करिए कि जो मैंने इनकर करा है, आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूँ, जो खर्चा आपने इनकर करा है, क्या ये खर्चा इनकर करके बिजनेस की इनकम कहीं ना कहीं जनरेट हो रही है? अगर आंसर आता है हाँ कि ये मैंने इनकर नहीं करा होता, तो बिजनेस की इनकम नहीं जनरेट हो रही होती, तो क्लेम कर लो। क्लेम कर लो। और अगर आंसर आता है कि नहीं, इसका कोई बिजनेस के साथ लेना देना नहीं है, इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो सोचो, चांसेस है नहीं क्लेम करने दे रही होगी सरकार। ओके, बट ये ब्लॉगिंग वाले जो बिजनेसेस अब नए स्टार्ट हो गए इन द लास्ट फ्यू इयर्स, इसमें तो लाइन ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है, काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा लिटिगेटिव हो जाता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि वो पर्सनल है नहीं। फॉर एग्जांपल एक गेमर है, गेमर के लिए PS5 खरीदना भी इज आल्सो एन एक्सपेंडिचर दैट दे कैन क्लेम। एब्सोल्युटली, लाइट्स, योर कैमरास, एवरीथिंग। करेक्ट, एवरीथिंग। तो दैट इज समथिंग, मतलब आपके जो जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं उनको लूज मत करिए। जहां पे सरकार अलाउ कर रही है लीगली टैक्सेस बचाना, बचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, बट सबूत होने चाहिए आपके पास। डेफिनेटली इनवॉइसेस रखिए, जो पे कर रहे हैं उनको ढंग से पे करिए। मोड्स बता रखे हैं सरकार ने, 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे पेमेंट करिए, कैश के अंदर मत पे करिए, क्लेम नहीं कर पाएंगे। कैश नहीं कर पाएंगे क्लेम।
तो बिल्स रखिए, अपने पेमेंट्स अच्छे से करिए, सब बाकी प्रूफ्स इतना रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, वो तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। नहीं, बट बिल्स वो स्टिल आपसे डिमांड कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने बैंक से पे करा है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर दिख रहा है वाइट का मनी यूज करा है मैंने, तो यहाँ पे आई डोंट नीड अ बिल। यू विल हैव टू प्रूव बिल्स दिखा के। बिल्स आ जाते हैं ईमेल पे मोस्टली, हाँ, है ना? उनको इंटैक्ट So you रखिए, use those उनको अच्छे से for- रखिए, ताकि कल को जाके अगर स्क्रूटनी हो, कोई कहे 4 साल पहले तुमने 40,000 रुपए कहीं पे लगाए थे, तो आप बता पाए, आपको खुद को पता हो कि ये आपने कहाँ लगाए थे, क्यों लगाए थे। Actually, that brings me to an important question that's actually there on the list. Let's say किसी ने एक साल में टैक्स इवेड किया, और सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं टैक्स की कुछ चोरी करी। साल ओवर हो गया, नया साल शुरू हो गया, नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, अप्रैल आ गया। अब वो बंदा बहुत खुश है कि भाई मैं तो बच गया, कोई नोटिस नहीं आया, और अब वो साल गुजर गया है, तो अब गवर्नमेंट की नजर मुझ पे से हट गई। आप इस पे थोड़ा क्लैरिटी दो। एक इंसान कब तक खुश नहीं हो सकता? कितने टाइम तक उसको थोड़ा डर के रहना पड़ेगा? भाई चुराया है और अभी भी पकड़े जा सकते हो। इसके ऊपर कोई लिमिटेशन? देखिए, इसमें ना अलग अलग लॉज के अंदर इन्होंने डिफरेंट स्टांसेस ले रखे हैं। जैसे अगर आप आईटी लॉ के बारे में बात करेंगे, तो अब इन्होंने टाइमलाइंस थोड़ी रिड्यूस करी हैं। पहले तो ये 10-10 साल तक पकड़ रहे थे, अब इन्होंने कह दी कि अगर 50 लाख रुपए तक की इनकम एवेड करी है, इनकम टैक्सेस नहीं, 50 लाख तक की इनकम, यानी कि रफली 15 लाख रुपए तक का टैक्स मान के चलिए, जी, उतने तक एवेड करा है अगर आपने, तो 3 साल तक पकड़ेंगे। ओके। लेकिन अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा इवेड कर रखा है, तो 5 साल तक पकड़ सकते हैं हम। अब यहाँ पे भी ना बहुत सारे कावियाट्स हैं। जैसे किसी ने एविजन करके, मान के चलिए, स्विस बैंक अकाउंट के अंदर मनी पार्क कर रखा है, इंडिया के बाहर एसेट्स खरीद रखी हैं, तो जी। अकेले आईटी लॉ नहीं है जो पकड़ रहा होता है, ब्लैक मनी एक्ट है इन्होंने बना रखा है, और वहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऑफ कोर्स, कभी भी पकड़ सकते हैं, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, वगैरह वगैरह। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो अगेन नुआंसेस होते हैं। हम आईटी लॉ पढ़ते हैं, हमें लगता है यहाँ पे तो चलिए 5 साल की लिमिट है, 6 साल की लिमिट है, 7 साल हो गए, कुछ नहीं होगा, स्विस बैंक के अंदर पार्क कर देते हैं पैसे को। पार्क करते ही ऑटोमेटिकली ब्लैक मनी एक्ट यहाँ पे आपका ट्रिगर होता है, और वो आपको पकड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कितना ही कोशिश कर लीजिए, कोई ना कोई लॉ इन्होंने बना रखा होगा, एंड चैन की नींद सोनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर यही है, ईमानदारी से अपने टैक्सेस भरते रहो, ताकि चैन की नींद आती रहे। अदरवाइज पॉइंट भी क्या है पैसा बहुत बनाने का, अगर आप हर वक्त डर में जी रहे हो हाँ। कि कभी भी रेड हो सकती है, खर्च कभी नहीं पा रहे उसको, हाँ, खर्च खुद के नहीं कर पैसे होने के बावजूद Exactly. एक वैसी जिंदगी जीनी हाँ। पड़ रही है जो बिना पैसे की जीनी पड़ती। जो लोग टैक्स में कुछ इस तरह का करते हैं, आपको क्या लगता है उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से? कॉन्स्टेंटली टेंशन रहती है, आई फील, एक लाइफ के अंदर की, और कभी भी खर्चा नहीं कर पाते हैं। हाँ, खर्चा नहीं कर पाते, रेड पड़ने का डर होता है। आपने पढ़े होंगे, आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं कि कोई इंसान पकड़ा गया, उसके घर पे रेड हुई, 500 करोड़ 800 करोड़ की संपत्ति पाई गई, एंड लाइफ क्या जी रहे थे वो, स्कूटी पे जाते थे डेली ऑफिस, क्या फायदा? कपड़े ऐसे पहनते किसके थे। लिए किया? तो ही इज बिन हाइडिंग दैट मनी ऑल हिज लाइफ। कितनी वेल्थ क्रिएट कर ली, बिनामी हाँ। प्रॉपर्टीज बना रखी है, बट उसको जी नहीं पा रहे हैं आप। आई पर्सनली फील कि आई वुडंट वांट दैट लाइफ फॉर माई सेल्फ, बट ठीक है, हर एक की अपनी सोच है, आई थिंक। नहीं, एक्चुअली हाँ, बहुत ज्यादा फर्क दिखता है कि भाई एक तरफ तुम इतना करोड़ जमा कर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम एकदम, मतलब एक फॉरेन ट्रिप मारने में भी तुम्हें डर लग रहा है। करेक्ट। क्या पॉइंट है? नहीं, इससे तो बेहतर है टैक्स ईमानदारी से दो, हाँ, और लीगली जो सेव करिए, जितना सेव कर सकते हैं, सेव There's no करो, harm in इन्वेस्ट करो, हम्म। उस पैसे से जो पैसा तुम बना रहे हो उसको आराम से खर्च करो, घूमो जहां जाना है, जो करना चाहो करो। ऐसा भी कोई केस, कोई इंटरेस्टिंग स्टडी, अब केस स्टडी याद आ रही हो जिसमें रॉन्ग नॉलेज ऑफ टैक्सेशन की वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हो, आपका अपना क्लाइंट, विदाउट कोटिंग नेम्स? हाँ, तो अभी एक केस आया था जहाँ पे हुआ क्या, क्लाइंट ने एक रील देखी, और उस रील के अंदर उनको पता चला कि आप कोई भी अगर सामान खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, एंड इफ यू टेल योर जीएसटी नंबर टू द पर्सन दैट यू आर बाइंग द थिंग्स फ्रॉम, तो वो जो जीएसटी होता है आइटम के अंदर, उसका आईटीसी मिल पाता है। सॉर्ट ऑफ, मैं पब्लिक के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, एक तरीका होता है उसको रिफंड की तरह क्लेम करने का। रिफंड नहीं होता रियलिटी में, आउटपुट टैक्सेस आपके कम करवा देता है, वो मोटे मोटे तौर पे मान के चलिए रिफंड हो जाता है। मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा देती हूँ लोगों की इसके लिए, कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मुझे सामान खरीद के आगे बेचना होता है, तो मैंने खरीदते वक्त अगर 50 रुपए का टैक्स दिया है जीएसटी, और आगे जब मैं बेच रही हूँ तो उस पे भी जीएसटी होगा। लेट्स से उस पे 30 रुपए का है, तो ये 50 और 30 रुपए आपस में एडजस्ट हो सकते हैं। करेक्ट, मोटे मोटे तौर पे आपको वापस मिल जाएंगे। वापस मिल जाएंगे, और आपको फर्दर 20 रुपए ही गवर्नमेंट को देना होगा। हाँ। क्योंकि 50 आप दे चुके हो, और आगे 70 देने या 80 देने हैं, तो 80 में से 50 हटा के 30 ही देने पड़ेंगे नेट। हाँ, करेक्ट, तो 50 रुपए बच गए। राइट।
अब ये उनको पता चल गया तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने के टाइम पे उन्होंने जो बिजनेस ओनर है, जो डीलरशिप है, उनको अपना जीएसटी नंबर बता दिया। डीलरशिप ने कुछ आर्ग्यू नहीं करा, उन्होंने बिलिंग करने के टाइम पे जीएसटी नंबर डाला और उन्होंने इसको B2B ट्रांजैक्शन की तरह, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह रिपोर्ट कर दिया रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। अब इन्होंने क्या सुना था, इन्होंने ये सुना था कि अगर कोई भी आईटीसी, जीएसटी आईटीसी आपकी रिटर्न में दिख रहा होता है, जीएसटी R2B होती है एक रिटर्न, उसके अंदर दिख रहा होता है तो आईटीसी ले सकते हो। इसी को कहते हैं हाफ बेक नॉलेज। थोड़ा आइडिया है आपको कि क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं, बट एक ही पार्ट पता है, दिस इज अ कंडीशन कि जीएसटी R2B के अंदर अमाउंट आना चाहिए तो क्लेम कर सकते हो, बट दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। दैट इज वेयर यू need to understand taxes. There are 6 sections, 16 to 21, section 16 to 21. सारे पढ़ेंगे तो पता चलता है आईटीसी कब देते हैं कब नहीं देते हैं। सेक्शन वो तो 17 बहुत ज्यादा हो जाएगा लोगों के लिए। टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा तभी आईटीसी ले सकते हैं। लोगों को एक ही पॉइंट पता होता है, माल खरीदा है, बिजनेस के लिए अगर खरीदा है तो नंबर बता दो, 2B के अंदर आ जाएगा, आईटीसी ले लो। नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है वहाँ पे। उन्होंने नहीं चेक करी, उन्होंने गाड़ी खरीदी, आईटीसी ले लिया। अगर 50 लाख की गाड़ी है तो रफली 20 लाख रुपए उन्होंने रिफंड की तरह यहाँ पे ले लिए। तो उसके उनके बाद टैक्स कंसल्टेंट ने मोस्ट लाइकली उन्होंने कंसल्टेशन ली ही नहीं। उन्होंने कंसल्टेशन कहाँ से ली? रील से ली, किसी ना किसी, और रील के अंदर बताया गया था आईटीसी ले सकते हैं, उन्होंने ले लिया। This is so strange, you know. 60 सेकंड्स के अंदर आप कितनी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे? 6 सेक्शन नहीं समझा सकते। हाँ, तो बेसिक आइडिया दे दिया कि अपना नंबर बताओ, बिजनेस के अगर बिजनेस के लिए चीजें ले रहे होते हो तो आईटीसी ले लो, उन्होंने ले लिया। नाउ ही इज रिसीव्ड अ समन्स, उनको जीएसटी आईटीसी रिवर्स करना होगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सारी चीजें देनी होगी। नाउ ही इज पैनिकिंग। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। जैसे मैं रेवेन्यू का बता रहा था आपको, लोगों को लगता है 10, 20, 40 लाख 3 लिमिट है, उससे ज्यादा का रेवेन्यू आता है तो ही नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर जो होता है। ऐसा नहीं इतना होता। आसान नहीं। लॉ के अंदर 2 सेक्शंस बना रखे हैं डिटेल्ड, सेक्शन 22, 24। हर पॉइंट को रीड करेंगे तो पता चलेगा कोई भी अगर ट्रिगर हो गया तो नंबर लेना पड़ेगा। और मजे की बात, अगर डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि 1.5 साल पहले सेक्शन का कोई ना कोई पार्ट है जो ट्रिगर हो गया था मेरे हाथों में, मेरे को आइडिया ही नहीं है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? 1.5 साल पहले से मैं जितनी बिलिंग कर रहा हूँ, जितने का रेवेन्यू आ गया है, टोटल अमाउंट के ऊपर जीएसटी देने को कहेगा। मैंने कलेक्ट नहीं करा होगा तो कौन पे करेगा? मैं खुद पे करूंगा, खुद की पॉकेट से पे करूंगा, क्योंकि क्लाइंट अब नहीं देगा। एक बार माल बिक गया, सर्विस दे दी है, रेवेन्यू आ गया है, अब वो कुछ नहीं देगा। कैसे निकलवाओगे? तो खुद पे करिए। हाँ, क्योंकि अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है और आपको लग रहा है कि आप जीएसटी के कंप्लायंस के लिए अभी तक एलिजिबल नहीं हो, तो आप आगे बिल भी नहीं करेंगे। जीएसटी बिल नहीं कर पाओगे। हाँ। तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे वो अमाउंट जो आपको गवर्नमेंट को सबमिट कराना है। करेक्ट। तो फिर इसका मतलब अगर आपने नहीं लिया है बट आपको लेना चाहिए था, तो अब आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। जेब से देना पड़ेगा, और क्योंकि देर में दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। वारे नहीं आ रहे। परफेक्ट। आप ना एक बार ये आईटीसी का कॉन्सेप्ट ना एक सिंपल एग्जांपल से समझा दो, मुझे मालूम है लोगों को समझ नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, सो वेरी सिंपल, 50, 60, 100 रुपए वाले फिगर्स लेके। ठीक है, तो मान के चलते हैं आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने कोई टीवी बनाया है। टीवी आपने बना के मेरे को सेल करा है, मैं सीधा रिटेलर हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, कोई ना कोई कंज्यूमर को देने वाला हूँ। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ने मान के चलिए कह रखा है टीवी के ऊपर 5% का रेट आएगा। 5% क्या कह रहे होते हैं वो? मार्केट के अंदर जितने का उतर रहा है टीवी, मार्केट के अंदर जितने की वैल्यू आ रही है, उतने का 5% टोटल हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, अगर ये लाख रुपए का टीवी है मार्केट के अंदर जो उतर रहा है, तो टोटल इनको कितना कलेक्ट होना चाहिए जीएसटी? 5% के हिसाब से 5,000 रुपए। करेक्ट। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी? आप मेरे को दे रहे हो, आप 5% यहाँ पे कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हो, जो जीएसटी आपने कलेक्ट करा। मैं किसी और को दे रहा हूँ, मैं अपने प्राइस पे कलेक्ट करके दे रहा हूँ सरकार को। आगे कोई और अगर चेन के अंदर ये किसी ना किसी को सेल कर रहा है, वो अगेन कलेक्ट करके दे रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है और बार बार सरकार को जीएसटी जा रहा है। जबकि इन्होंने कहा था एक ही बार लेंगे हम, टोटल मार्केट की जो टोटल वैल्यू आ रही होती है उतने का 5% ही लेंगे। तो सरकार ने इसका तरीका क्या बना रखा है? सरकार ने कहा कलेक्ट हर एक को करना होगा। आपने मुझे माल बेचा है तो कलेक्ट करके दोगे अपनी वैल्यू का, जो 20,000 पे बेचा है, 10,000 पे बेचा है, 30,000 पे बेचा है। मैं जब आगे बेच रहा हूँ तो मैं अपनी वैल्यू का 5% सरकार को दूंगा, लेकिन वो रोक के दूंगा जो कि आपने पहले ही दे दिया। क्यों? मैं दे चुका हूँ। आपने, हाँ मैं दे चुका हूँ, खरीदने के टाइम पे दे चुका हूँ। तो आपने अगर यही टीवी मेरे को 10,000 का दिया था, मैंने आगे लाख का दिया है, तो मैं लाख रुपए पे 5,000 सरकार को देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा भाई 10,000 का मैंने खरीदने के टाइम पे 500 रुपए पहले ही दे दिया है, तो मैं 5,000 नहीं दूंगा। तो मैं 5,000 चाहिए ना टोटल, 4,500 मैं दे दूंगा, 500 पहले से दे रखे हैं। ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट खरीदने के टाइम पे जितना टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, उतने का क्रेडिट मिल रहा है, ताकि सरकार के हाथों में एक्सेस ना चले जाए, कैशबैक की तरह। हाँ,
5% ही रहे उनके हाथों में, बस सिंपल सा फंड। ठीक है, ओके, परफेक्ट। सीएस टिपिकली अपनी कंसल्टेशन के लिए क्या चार्ज करते हैं? ओके, फी की अगर बात किसी ने कभी नहीं लिया है तो वो उसको मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा अमाउंट फेयर है? कितना दूं, कितना basically? देना चाहिए? 500 दूं कि 5 लाख दूं? कुछ तो एक नंबर होना चाहिए। फेयर इनफ। ये सवाल ना हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है। तो क्लाइंट्स क्या करेंगे, जिनको कोई भी टैक्स क्वेरी है, उनकी सीधा एक जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होता है वो ये आता है कि अगर हम कंसल्टेशन लेते हैं तो फ़ी क्या होगी। मैं कहता हूँ पहले कभी मत पूछिए फ़ी, और अगर कोई कोट कर रहा है तो सबसे पहले भागिएगा। क्यों भागना है? उसने काम नहीं जाना है कि क्या काम करना है, कितना टाइम लगाना पड़ेगा वो काम करने के लिए, उसने पहले ही फ़ी कोट कर दी है। तो अगेन माय पॉइंट बीइंग, उसने टाइम नोट कर रखा है कितना टाइम वो आपके केस के अंदर लगाएगा। उसको 5 मिनट ही लगाने, तो उसने बता दिया 500 में कर दूंगा, 1000 में कर दूंगा, 2000 में कर दूंगा। मत करवाइए। हम क्या करते हैं, या कोई भी अच्छा कंसल्टेंट जो भी होगा वो क्या करेगा, पहले वो जानेगा स्कोप कितना है काम करने का। जी। अब बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, रिटर्न फाइल करनी है। जी। सैलरीड इंसान है, उसने बता दिया मैं हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई डिडक्शंस नहीं है, कुछ आसान नहीं है। रिटर्न तो है। मुझे पता है कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट लगने वाले हैं, 20 मिनट लगने वाले हैं, हो जाएगा। दूसरा इंसान है, डेली इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा है, 400 लाइन आइटम की ट्रांजैक्शंस हैं, 300 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस के भी अलग अलग रेवेन्यूज आ रहे हैं, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इनकम आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी। क्या दोनों में सेम टाइम लगेगा मेरे को, दोनों की सेम फी होएगी? नहीं हो सकती सवाल ही कभी। नहीं उठता। तो हम क्या करते हैं, टिपिकली स्कोप जानते हैं काम का क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद कोई ना कोई फी जो भी निकल के आ रही होती है वो कोट करते हैं। तो आपके लिए एज अ लेमैन, अगर कभी भी कंसल्टेंट हायर कर रहे होते हैं तो पहले काम बताया करिए, काम करवाना क्या है, एंड देन अलग अलग प्राइस पॉइंट्स के अंदर सारे लोग मिलेंगे आपको। कोई हो सकता है सेम काम 5000 में कर रहा हो, कोई 50,000 चार्ज कर रहा हो। पूछिए क्यों 50,000 चार्ज कर रहे हैं, क्या ऑफर करेंगे, एंड देन यू विल हैव टू डिसाइड कि हाँ वेदर इट मेक सेंस और नॉट। और वो देखिए फाइनेंशियली दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू वेरी डिपेंडिंग ऑन क्या काम करवा रहे हैं। वो एक नंबर उसको देना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स अ सर्विस एट द एंड ऑफ द डे। Yes. उसको इतना हम वो नहीं कर सकते, प्रोडक्ट की तरह नहीं कर क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ इस चीज़ के लिए ये एक अमाउंट है। डिपेंड्स कि क्या काम कर रहे हैं, राइट। एंड दैट एवरीबडी कैन फाइंड। बट ये खुद के लिए मत करा करिए कि काम सोचे बिना या कम्युनिकेट करे बिना आप एक्सपेक्ट करें कि आपको एक फी का आइडिया लग जाएगा, एंड देन यू विल मे बी गो अहेड विद इट और नॉट। और प्रॉब्ली एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि ढंग के तुमने 2-3 सीएस के नंबर निकाले, तीनों से डिस्कस किया कि तुम्हारा क्या इशू है, क्या करवाना है, कंपेयर कर लिया कि भाई मोरलेस अगर सेम ब्रैकेट में सब लोग कोट कर रहे हैं तो जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, जिससे बात करके आपको सबसे पॉजिटिव वाइब आ रही है, आप उसके साथ यू गो अहेड। दैट वुड आल्सो बी वन ऑफ द अप्रोचेस। बट अगेन वही कि कम्युनिकेट करके देखिए कि वो काम क्या है एंड वो सर्विसेज ऑफर क्या कर रहे हैं। अगेन सर्विसेज के अंदर भी डिफरेंस आ सकता है। एक इंसान कह रहा है कि मैं तो बस कर दूंगा, मैं तो बता दूंगा कि ये होगा। एक इंसान कह रहा है कि नहीं, मैं समझाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक इंसान कह रहा है कि तुम्हें रिटर्न फाइल करवानी है, मैं सिर्फ फाइल कर दूंगा। दूसरा कह रहा है मैं बताऊंगा एक एक पार्ट के अंदर क्या हो रहा है ताकि अगले साल से खुद ही कर लो। कोई बताता भी है ऐसे? बिल्कुल बताते हैं, हम बताते हैं, बहुत सारे और कंसल्टेंट्स बताते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच आई फील, एंड वो अगर आपके साथ अलाइन हो रही है तो आई फील यू विल बी हैप्पी। इंडियन रेजिडेंट्स इंडिया के बाहर जो इनकम कमाते हैं वो इंडिया में टैक्स क्यों होती है? ये कई लोगों की एक दुखती रग होगी। पीपल प्रोबेबली वांट टू फाइंड आउट एन आंसर टू करेक्ट। व्हाई इज इट सो ओके, एंड हाउ इज इट फेयर? ठीक है, बहुत लॉजिकल है दिमाग में आना कि ये तो फेयर नहीं है। जी। मैं अगेन एक एग्जांपल से आपको देता हूँ यहाँ पे जी। इसका आंसर। लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु इज फ्रॉम जर्मनी, वो इंडिया में रहते हैं, उनकी सारी इनकम्स जो आ रही हैं सारी की सारी जर्मनी की हैं। अब इंडिया में रेजिडेंट की अगर आप बात करेंगे तो रेजिडेंसी इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन कितने दिन आप इंडिया में रह रहे हैं। जी। इंडियन है नहीं है डजंट मैटर, सिटीजनशिप नहीं सिटीजनशिप मैटर नहीं करती है, ओरिजिन भी मैटर नहीं करता। डोमिसाइल नन ऑफ इट मैटर्स। हाँ। तो वो जर्मनी का इंसान है, जर्मनी का ही सिटीजन है, इंडिया में रह रहा है, परमानेंटली यहाँ पे रह रहे हैं, और इनकम उनकी सारी की सारी वहाँ पे आ रही है। वहाँ पे घर है, रेंट पे चढ़ा रखा है, कोई और इनकम आ रही है। इंडिया कहता है वो इनकम पे जो भी आप कमा रहे हैं, जर्मनी में कमा रहे हैं, यूएस के अंदर कमा रहे हैं, कहीं भी कमा रहे हैं, इंडिया में टैक्सेस देने पड़ेंगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। इंडिया कहता है कि भाई आप बाहर इनकम कमा रहे होंगे, माना, पर रोड पे जब निकल रहे हैं तो रोड जो बिल्ड करी है एज अ कंट्री इंडिया ने, उसको यूज़ कर रहे हैं। चाहे खुद की गाड़ी है, टैक्सी है, ऑटो है, जैसे भी जा रहे हैं, रोड को यूज़ कर रहे हैं। कल को भगवान ना करे कोई क्राइम हो जाए तो हमारी पुलिस ये नहीं कहेगी जर्मनी की पुलिस से जाके असिस्टेंस लीजिए, वो हेल्प करेगी आपको। हमारे जुडिशियल सिस्टम्स हैं, लॉयर अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लॉयर आपको दिया जाएगा। सो बेसिकली माय पॉइंट इज जो भी गवर्नमेंट को कॉमन वेलफेयर के लिए खर्चा करना पड़ता है
वो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप इंडिया के हैं, इंडिया के बाहर के हैं, वो इनकर करा जाएगा। अगर जो भी हुआ है, जो क्राइम हुआ है या जो फैसिलिटीज देनी है, वो इंडिया वाले इंसान को देनी होती हैं, तो वो हर एक को ही देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ के आप हैं। सो दैट इज वेयर द कंट्रीज, नॉट जस्ट इंडिया, सारी कंट्रीज ये कहती हैं कि अगर आप हमारे यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन वेलफेयर के लिए अगर जो लोग यहाँ रह रहे हैं वही कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? विलिंगली देखिए कोई नहीं करेगा। आपको कोई कहे आपके घर के सामने रोड बनानी है, शायद आप नहीं देना चाहेंगे, पर अच्छा अपने घर के सामने की रोड के लिए तो दे देंगे, बाकी रोड्स के लिए कौन देंगे जो जब तक कोई ट्रैवल नहीं करेगा तो राइट राइट। इन चीज़ों को जब तक हमारी लाइफ से हटाया नहीं जाता, आर्मी, पुलिस, नेवी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जब तक हटाएंगे नहीं ना, तब तक आपको लगेगा कि हाँ मेरे को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये हट जाएंगी आप कहेंगे नहीं नहीं यार थोड़े पैसे ले लो, लेकिन वो होना इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं होंगे सर्विस चाहिए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम जो जो चीज़ें कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे। जी। तो ये चीज़ें हम रियलाइज़ नहीं करते, बट कहीं ना कहीं ये खर्चा रिक्वायर करती हैं, और उसके लिए ही सरकार कहती है जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं वो कहीं से भी कमा रहे हो उनसे तो लेंगे ही लेंगे, पर अगर आप बाहर के भी हो और इंडिया से कमा रहे हो तो भी लेंगे। ये हाँ, इस पे मैं आने ही वाली थी। नॉन रेजिडेंट्स कौन सी इनकम्स पे इंडिया में पैसे पे करते हैं? जो वो इंडिया से कमा रहे होते हैं। तो बेसिकली उसमें लॉजिक क्या होता है, वो उसमें कंट्रीज कहती हैं कि भाई हमारी जो कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिया से कोई इनकम कमा रहा है वो जनरेट इंडिया से हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है, पे करने वाला इंसान इंडिया में है, तो वहां पे ये कहते हैं कि तुम इंडिया में रह नहीं रहे, अच्छा कोई नहीं रह नहीं रहे होगे, पर पे करने वाला यहाँ पे है तो हम टैक्सेस लेंगे। अब यहाँ पे सामने वाले को दिक्कत एक आती है, वो कहता है कुछ जगहों पे करने वाली कंट्री कह रही है कि यहाँ पे करने वाला है इसलिए टैक्सेस देने हैं, और कुछ जगहों पे कंट्रीज कह रही है कि तुम यहाँ पे रह रहे हो इसलिए देना पड़ेगा। तो ये जर्मनी वाला इंसान जो कि इंडिया में बैठा हुआ था, जर्मनी की इनकम कमा रहा था, जर्मनी में बैठ के कोई ना कोई, उस इंसान को इंडिया में भी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं और जर्मनी के अंदर भी देने पड़ रहे हैं, सेम इनकम पे। तो फिर क्या करे? तो यहाँ पे क्या करे? अब यहाँ पे आता है एक डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट जी। तो यहाँ पे कंट्रीज काफी बार ऐसे करने लग जाती हैं कि अपने अपने यहाँ पे फंडे लगा के रेजिडेंसी डिटरमिन करने का हर एक का अपना तरीका है, इनकम्स को टैक्स करने का हर एक का अपना तरीका है। अगर एक ही इनकम पे दो कंट्रीज टैक्सेस लगाने लग जाएं तो यहाँ पे आती हैं काम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटीज, DTAAs। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रीज ने एग्रीमेंट कर रखे होते हैं कि हम एग्रीमेंट कर लेंगे, एक इनकम पे हम ले लेंगे टैक्सेस, एक इनकम पे तुम ले लेना। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग इनकम्स पे भी वेरी करता है। कोई इनकम पे इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी है, किसी पे इंडिया US की ट्रीटी है, कोई इनकम पे हम कह रहे हैं तुम ले लो, कोई इनकम पे वो कह रहे हैं तुम ले लो, दोनों नहीं लेते हैं। डबल टैक्सेशन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, परफेक्ट। बट फिर भी कभी तो हो सकता है अगर कोई ट्रीटी नहीं है तो। हाँ, क्योंकि सेक्शन 1991 में 90 और 91 के अंदर डबल टैक्सेशन ये इस केस में तो ये अवॉइड कर देते हैं कि एक ही इनकम दो कंट्रीज के अंदर कवर हो रही है तो ये नहीं होने देते हैं, उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करवा देते हैं। पर क्या डबल टैक्सेशन कभी होती ही नहीं है? होती है, कुछ लोगों के साथ होती है। जो एवेजन कर रहे होते हैं उनके साथ करती है सरकार, और कह के करती है। कैसे करती है एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। 1 करोड़ का फ्लैट है, ठीक है, सर्कल रेट उसका 1 करोड़ का है, जिसको नॉर्मली मार्केट के अंदर वाइट की वैल्यू कहा जाता है। जी जी। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैंने और आपने एग्रीमेंट करा, आप सेलर हैं मैं बायर हूँ, और हमने एग्रीमेंट करा है कि इसको हम 20 लाख के अंदर खरीदेंगे। मैं खरीदूंगा, बायर हूँ मैं, और आप 20 लाख के अंदर सेल कर रहे हो। क्यों? आपने भी कभी ना कभी 18 लाख की 20 लाख की खरीदी थी। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मैं 20 लाख की चीज़ को 1 करोड़ अगर सरकार को दिखा के लूंगी तो मेरे को 80 लाख का कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी जी। तो वो अवॉइड करने के लिए हम दोनों क्या करते हैं, हम कहते हैं 20 लाख रुपए व्हाइट में लेन देन कर लेंगे और 80 लाख क्या कर लेंगे, ब्लैक में लेन देन कर लेंगे, यानी कि कैश का लेन देन कर लेंगे। सरकार को नहीं दिखाएंगे। सरकार कहती है सर्कल रेट हमने पकड़ रखा है, सर्कल रेट ये मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे हो ही नहीं सकती। हमें आइडिया है इस एरिया के अंदर इतना जो बड़ा घर है ये 1 करोड़ का तो है ही है, मिनिमम है ये। तुम इससे नीचे दिखाने की कोशिश करो, हम मानेंगे ही नहीं। तुम कह रहे हो ना 20 लाख के अंदर करा है, ठीक है, तो 20 लाख के अंदर तुमने ये काम करा है, दोनों को पकड़ेगी सरकार, यहाँ पे डबल टैक्सेशन करेगी। और कैसे करेगी? बड़ी शानदार केस स्टडी है। तो ये क्या करते हैं, You're so excited to share. बढ़िया। तो ये सेलर को पहले पकड़ते हैं। ये सेलर को कहते हैं तुमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख में सेल करी है। हम मानते ही नहीं है, 20 लाख हमारे लिए कोई वैल्यू है ही नहीं, हम मानेंगे तुमने 1 करोड़ में ही सेल करी है। 2 अलग अलग सेक्शंस आ रहे होते हैं, 43C, 50C, अलग अलग चीजें होती हैं। बट जब सर्कल रेट खुद ही 20 लाख लगा रखा, 1 करोड़, सर्कल रेट 1 करोड़ का है। अच्छा ओके, सर्कल रेट। ये कहेंगे कंसिडरेशन जो आपने बताई 20 लाख की, हम नहीं मानते हैं। 1 करोड़ का सर्कल रेट है, हम यही मानेंगे कंसिडरेशन है। 18 लाख में खरीदी थी आपने, 1 करोड़ में सेल करी है, गेन आ रहा है, टैक्सेस जो आते हैं सॉरी, वो पूरे के पूरे पे करो। स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, अगेन 1 करोड़ पे करो। तो ये 2 चीजें रिजॉल्व हो गई।
एक बार आपकी जो आप ब्लैक मनी यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, इसको इन्होंने पीनलाइज कर दिया, अभी नहीं रुकेंगे। अभी आएंगे मेरे पास और मेरे पास आके कहेंगे तुमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख में खरीदी है। अरे बहुत बढ़िया हो गया, तो 80 लाख का फायदा हो गया तुम्हें। 1 करोड़ की चीज़ तुम्हें 20 लाख में मिल गई है, 80 लाख की इनकम आ गई है। अब तुम इसको इनकम की तरह दिखाओ, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है वाह। और ये 80 लाख पे तुम भी टैक्सेस दो। तो दोनों लोगों से दो लोगों को पकड़ेंगे, आपको भी पकड़ेंगे, मेरे को भी पकड़ेंगे, और ये बिल्कुल डबल टैक्सेशन है। सरकार कहती है हम करेंगे, क्यों? क्योंकि तुम बदतमीजी कर रहे हो। सर्कल रेट अगर एक्चुअली लोअर है, कोई रीजन है, आपके घर के सामने नाला है, कोई और दिक्कत आती है जिसकी वजह से आप कहते हैं बाकी प्रॉपर्टीज के रेट होंगे 1 करोड़ के, मेरा नहीं है, हाँ। प्रूव करो, सरकार नहीं परेशान करेगी। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो प्रूव, तो दोनों को पकड़ेगी और कह के पकड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते। कि एक को पकड़ेगी कि तुम्हें सीधे सीधे पैसे में मुनाफा हुआ है, और दूसरे को कि भाई तुमको वैल्यू में अप्रिसिएशन हाँ, हुआ तुम है। खुद कह रहे हो भाई कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हें 20 लाख में मिल गई, बहुत फायदा हो गया, मुबारक हो, पैसे दो। राइट, तो डबल टैक्सेशन होती है, ऐसा नहीं है, होती नहीं है, बट तो बहुत rare scenario है। इवेजन वाले सिनेरियोज के हाँ। अंदर करती है सरकार। हाँ। इवेजन अगर नहीं कर रहे हैं तो दे विल ट्राई कि डबल टैक्सेशन कहीं पे ना हो। तो मेरा एक आपसे इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ ये बनता है, जो कई बार लोगों के मन में आता होगा। कई बार ऐसा नहीं होता कि भाई हमने कोई चीज खरीदी, नहीं, पहले चलो हमने पहले पैसा कमाया, ठीक, मैंने कुछ पैसा कमाया, उस पे मैंने इनकम टैक्स दिया। अब इसका मतलब जो मेरे हाथ में बचा है उस पे मैं टैक्स दे चुकी हूँ। इसमें से जितनी बार भी मैं कुछ खरीदती हूँ, मैं हर बार जीएसटी भी देती हूँ। तो आपको नहीं लग रहा डबल टैक्स हो रहा है? बार बार इसी थोड़ी सी इनकम पे बार बार हमें टैक्स के नाम पे कभी 10 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये पेन एरिया है जो डेफिनेटली लोगों को पिंच करता होगा। इसके बारे में व्हाट डू यू हैव एज एन ओपिनियन? इसमें देखिए 2 चीजें हैं, एक तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। लीगैलिटी की अगर आप बात करेंगे तो इसको डबल टैक्सेशन नहीं मानते हैं कोई भी लॉ के अंदर। इनके लिए डबल टैक्सेशन क्या है कि एक ही इनकम पे 2 बार आईटी लॉ के तहत हमने इनकम टैक्स लगा दिया, या एक ही रेवेन्यू पे 2 बार जीएसटी लगा दिया, ये उसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। एक इनकम पे इन्होंने अगर इनकम टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, कस्टम्स ड्यूटी अलग से लगा दी, कोई और ड्यूटी अलग से लगा दी, उसको डबल टैक्सेशन नहीं मानते हैं। बट इंसान के लिए तो वो टैक्स ही है। तो लीगैलिटी असाइड, एथिकली ये गलत है कि आप कितने टैक्सेस पे करेंगे। आप इनकम कमाने के टाइम पे कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के टाइम पे जीएसटी पे कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं, फिर कुछ सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं तो एसटीटी पे कर रहे हैं, कमोडिटी खरीद रहे हैं सीटीटी पे कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं रोड टैक्स पे कर रहे हैं। ये सारा सरकार को ही तो जा रहा है। सब कुछ टैक्स है क्या? कहने को आप कह लेते हैं कि जीएसटी एक टैक्स है, लेकिन जो भी कंपल्सरली देना ही पड़ रहा है सरकार को, और कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे करके, डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा, सारी ही चीजें टैक्सेस हैं। फाइन पे कर रहे हैं, पेनल्टी पे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो सारी ही चीजें टैक्सेस ही तो हैं। करेक्ट। तो एथिकली ये डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा बर्डन नहीं आना चाहिए एक टैक्स पेयर के ऊपर कि इतने सारे टैक्सेस देने पड़े और इवेंचुअली कुछ बचे ही नहीं। पर लीगैलिटी वाइज अगर आप बात करेंगे, डबल टैक्सेशन इसको नहीं कह सकते। हाँ, तो वही बात हो गई कि बस हमने शब्दों को घुमा दिया। शब्दों को घुमाने का खेल है। हाँ, कि भाई हम सेम एक्ट में इसको डबल टैक्सेशन ही बोले, तुम कुछ भी बोलो, देना एट तो द पड़ एंड रहा ऑफ है। द हमें देना पड़ रहा है, राइट? करेक्ट, हमको तो डबल ट्रिपल 4 टाइम क्वाड्रुपल फील हो रहा है ना वो। करेक्ट, इम्पैक्ट है उसका डेफिनेटली। तो एक आम आदमी तो महसूस करता है उस चीज को, और तकलीफ है लोगों की लाइफ में इस चीज को लेके। आपको लगता है ये कभी रिजॉल्व, मतलब कोशिश भी की जाएगी रिजॉल्व करने की? देखिए, सरकार उतना ही करेगी जितना लोग रिक्वायर करेंगे। लोग जिन चीज़ों पे मुद्दे उठाएंगे, सरकार उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेगी। मान के चलिए कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। ऑफ कोर्स। द पॉइंट इज, अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं कि भाई हमारे ये पॉइंट्स हैं, हमें ये चीज़ों पे काम करवाना है, और अगर आप इन पे काम करते हैं तो ही हम इलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं काम करा तो अगली बार हम हटा देंगे सरकार को। जब तक कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, इन मुद्दों पे बात ही नहीं करेंगे, How तो do we कुछ भी नहीं होने communicate? वाला। हाउ डू वी कम्युनिकेट? वेरी गुड पॉइंट। आपके जो भी लोकल एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, जिनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट कर रहे होते हैं, वो रीचेबल होते हैं। उनके साथ डिस्कशन करिए, उनके साथ बातें करिए कि ये हमारे मुद्दे हैं, इन चीज़ों पे हमें चाहिए कि कल को जाके आप अगर इलेक्ट होते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इनके ऊपर बात आप खड़ी करें, इनके ऊपर बातें करें। अगर वो इंसान नहीं कर रहे हो तो उनको बोलिए अगली बार हम वोट नहीं करेंगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, लोग शायद जानते भी नहीं है वोट करने के टाइम पे कि वो किस एमपी के लिए वोट कर रहे हैं, किस एमएलए के लिए वोट कर रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा कौन है। हमारे दिमाग के अंदर होता है कि ये कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, और किसी भी रीजन से हम इनको सपोर्ट करते हैं, जो भी खड़ा हो जाके वोट कर दो। लोग पार्टी जो को गलत वोट है, करते हैं। क्योंकि पार्टी को वोट करेंगे तो आपके जो मुद्दे हैं, जो चीजें मैटर करती हैं आपको, वो कभी आएंगी नहीं फ्रंट ऑफ द I लाइन। think this is a very valid point here. I actually agree with you. Most of the time, people are just looking at the symbols. करेक्ट।
वो ये नहीं देख रहे कि बंदा कौन खड़ा है। हो सकता है दूसरी पार्टी, जो शायद पार्टी आपको पसंद नहीं है, बट उसके अंदर जो बंदा खड़ा है, बंदा बड़ा सॉलिड है। हाँ, और वो आपके मुद्दे उठाना चाह रहा है, पर आप मुद्दे बताएंगे तो उठाएगा वो। अगर वो जो मुद्दे घुमाते रहते हैं हर इलेक्शन के अंदर, आप उन्हीं पे वोट करते रहेंगे, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है चीजों को सुधारने का, उनके पास टैक्सेस उनका आते सही जा चल रहे रहा हैं, है, उनका सही चल रहा है। लिमिटेड लाइफ है, हाँ। छोटी जिंदगी है, उनका सही चल रहा है। हाँ, व्हाई और वुड दे टा- टेक और पेन? टैक्स पेयर करेगा क्या, ये समझिए ना। इलेक्शन दोबारा आएंगे, आप अकाउंटेबल उसको ठहराना चाहेंगे, ठहराएंगे किस चीज के लिए? आपने कहाँ उसको कम्युनिकेट करा और उसने कहाँ वादा करा कुछ करने का? कम्युनिकेट करा होता, उन्होंने वादा करा होता, तभी तो कहेंगे कि ये तुमने नहीं करा तो तुम्हें वोट क्यों दूं। आपने तो कम्युनिकेट ही नहीं करा, पहला स्टेप ही नहीं लिया यहाँ पे। वैलिड पॉइंट, वैलिड। कई बार हमको सुनने में आता है कि बहुत सारा काला धन रोटेट होता है रियल एस्टेट में और गोल्ड में। क्या गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सच में कर सकती है टू एंड दिस? बिकॉज जिन लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो रियल एस्टेट और गोल्ड में काला धन नहीं रोटेट कर रहे, उनके साथ ये अनफेयर है। मतलब वो अगर ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं, कोई सर्विस है, कोई रोड है, आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रही हूँ, हम सेम जगह रहते हैं, मगर आप बढ़िया एकदम काला धन बना बना के अपने जेबें भर रहे हो, मैं ईमानदारी से पे कर रही हूँ। अगर मैं सैलरीड हूँ तो क्या मैं पीनलाइज करी जा रही हूँ उस चीज के लिए? इसको कर्ब कैसे किया जा सकता है? हाउ डू वी स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग? कि अगर ईमानदारी से, कहते नहीं थे, मुझे याद है जब मैं सीए पढ़ रही थी तो मेरे सर ने, टैक्स सर ने ये बोली थी बात कि ईमानदार वही जिसको मौका ना मिले। तो सैलरीड के लिए शायद वही बोला जाता है, भाई इनको मौका ही नहीं मिलता बेचारों को, ये क्या करें, ये कहाँ से चुराएंगे? तो इसका मतलब इस बात का बिल्कुल ऑपोजिट क्या हुआ कि जिसको मौका मिल रहा है वो कर रहा है। करेक्ट। How do we stop this? And it's impacting the condition of a country heavily. How do we stop this? कुछ लोगों के हाथ में इतना पैसा क्यों हो? How is this fair? जो ज्यादा कमा रहा है उसे ज्यादा देना चाहिए ना टैक्स। करेक्ट। देखिए, ये ना माइंडसेट के साथ ही चेंज होगा, उसके बिना चेंज नहीं हो सकता। क्या ये करना बहुत डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। सरकार अगर चाहे तो कल इस चीज़ को रोक सकती है। बहुत ईजी एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करिए, किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर को फ़ोन करिएगा, आपकी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी के अंदर मेरे को पैसे इन्वेस्ट करने हैं, 10 करोड़ की है, 12 करोड़ की है, वो सीधा पूछेंगे, या रादर आप कहेंगे कि पेमेंट कैसे होएगी, वो सीधा कहेंगे 70-30 रेशो है, 60-40 रेशो है, एंड हर एक को आइडिया होगा 60-40 क्या कह रहा है, वो 70-30 क्या कह रहा है। खुले लफ्जों में नहीं बोलेंगे। इससे ज्यादा खुला मैं कह रहा हूँ हो कैसे सकता है कोई? उस इंसान को फोन पे भी डर नहीं है कि सामने कौन बात कर रहा है, कौन नहीं बात कर रहा है। वो सीधा कहता है कि 70-30 का रेशो है। वो बताना चाह रहा है आपको, इतना ब्लैक मनी लूंगा, इतना व्हाइट मनी लूंगा। राइट। मतलब डर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ आपने बना रखा है कि इवेजन नहीं करनी है, इनकम टैक्स जो होता है चोरी नहीं करना है। लेकिन रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, सोने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया नहीं है। मार्केट में आइटम खरीदने जाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है, बिलिंग करने के टाइम पे वो कहता है बिल चाहिए या बिल के बिना चाहिए। बिल के बिना दे दूंगा, कैश में दूंगा। अब वो क्या कर रहा है? वो सरकार को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो बिल नहीं जनरेट करेगा, कैश ले लेगा, सरकार को दिखाएगा नहीं, ना ही इनकम टैक्स देगा, ना ही जीएसटी देगा। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि डर नहीं है। सिंपल से तरीका बताता हूँ, अगर सरकार एक्चुअली चाहती है ये करना तो कितनी आसानी से कर सकती है। और ऐसा नहीं है मेरे को पता है कोई ऐसा नया तरीका मैंने निकाल रखा है, सरकार को भी आइडिया है। लेट्स से ये रैंडमली 2% केसेस को स्क्रूटनाइज करने लग जाते हैं। सिविल यूनिफॉर्म के अंदर लोग जाएंगे, फ़ोन पे पता करेंगे, रियल एस्टेट की डील्स ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, और फिजिकली जो इंसान पकड़ा गया ये करता हुआ, ब्लैक मनी में एंगेज करता हुआ, करते हैं ना काफी बार करप्शन के अंदर, ये ऐसे ही करते हैं। सिविल ड्रेसेस में जाएंगे, करप्शन करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई पकड़ा गया तो ऑफिसर को सस्पेंड करेंगे, एक्शन लेंगे। रियल एस्टेट के अंदर कभी होता देखा है? कभी पाया है कोई डीलर पे ऐसे रेड मारी गई और उसने ब्लैक मनी लेने की कोशिश करी तो खत्म कर दिया गया, उसके साथ जो भी बेसिकली पीनलाइज करना था, प्रोसिक्यूट करना था, वो चालू करा गया? कभी नहीं होता। और क्योंकि नहीं होता, लोगों में डर नहीं है। लेट्स से हाइपोथेटिकली आप कल को ऐसी न्यूज़ सुनने लग जाओ, हर तीसरे दिन न्यूज़ आ रही हो, आज ये रियल एस्टेट डेवलपर है, ये जेल में डाला गया, कल वो डाला गया, परसों कोई और डाला गया। आपको लगता है लोग कंटिन्यू करेंगे? करप्शन कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब देखेगा चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, लोग जेल जा रहे हैं, लोग अपने आप रुकेंगे। बिल्कुल। आज से 10 साल डरेंगे। आज से 10 साल पहले की बात करिए, रेड लाइट टापने के टाइम पे कोई सोचता भी नहीं था। मैं अपने एरिया की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, ज्यादा दिमाग में नहीं आता था। क्यों? डर नहीं था। चलान इतने छोटे और फिर भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। पुलिस कभी देख लेगी गलती से तो पकड़ेगी। आज के टाइम पे लोगों को डर है। क्यों? कैमरास इतने सारे इंस्टॉल हो रखे हैं, 2-2 हज़ार रुपये का चलान आ जाता है, मैटर करता है, कहीं ना कहीं पॉकेट को हर्ट करता है, तो लोग रुक गए हैं, ऑटोमेटिकली रुक गए हैं। अगेन
सोसाइटी को सेंसिटाइज करेंगे, लोगों को आइडिया होगा कि ये जो तुमसे पूछ रहा है ब्लैक वाइट का, जिसको तुम ऑफर कर रहे हो ब्लैक वाइट, वो बायर की जगह सरकार हो सकती है, जेल में डाले जाओगे, मोटी पेनल्टीज आएंगी, लोग ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही, ये भी एक सवाल आता है। मैं पूछने जा रही थी। सरकार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि लॉ मेकर्स को भी तो अपना ब्लैक मनी यहीं पे घुमाना है। वो कहाँ घुमाएंगे? वो जो ब्लैक मनी रख के बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने बंद कर दिया कि सोना नहीं खरीद सकते, रियल एस्टेट के अंदर नहीं लगा सकते, कहीं नहीं लगा सकते ब्लैक मनी को, अपने ब्लैक मनी का क्या करेंगे? तो उनको भी चाहिए ब्लैक मनी घुमाने के लिए सारी की सारी चीज़ें। और दिक्कत यहीं पे आ जाती है। ये सोच जिस भी सरकार ने जब भी चेंज करी और इम्प्लीमेंट करने की सोची, उनके दिमाग में आया कि हाँ, हम चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, चेंज लेके आना चाहते हैं, कोई ब्लैक मनी नहीं रखेगा। देंगे तो सारे देंगे इनकम टैक्सेस, और अगर नहीं देगा तो कोई नहीं देगा। उसी दिन चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन वो सोच वो लानी पड़ेगी। Yeah, that's sad. I know. And it's just harsh. It's shocking that you're being so honest about it. It's actually true. करने को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर शुरुआत किसी को करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा क्यों है कि जब आप एक प्राइवेट नौकरी करते हो, आप हमेशा हर चीज टाइम पे कर रहे होते हो, डर होता है क्योंकि करेक्ट। तो नौकरी चली जाएगी। तो आई थिंक डर का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को ढंग से चलाने के लिए, कि हर चीज अपने टाइम पे सही तरीके से हो रही है। जब डर खत्म हो जाता है तो लोग कुछ भी कर रहे होते हैं। बहुत मुश्किल है सोसाइटी को ना रूल्स के बिना रेगुलेट कर पाना, और उनके रूल अकेले morals पे छोड़ के। हाँ, और रूल अकेले बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करने की इंटेंशन नहीं रखते हैं। और वो इंटेंशन ऑटोमेटिकली लोगों को दिख जाती है, उनको पता है सरकार क्या इम्प्लीमेंट करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर जो होती हैं, वो मतलब हमें पता होता है कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। रूल्स हर एक को पता है। आपको पता है रोड पर रॉन्ग साइड चलेंगे तो ये भी रूल का कॉन्ट्रावेंशन है, लेकिन आपको पता है कौन देख रहा है? हाई बीम पे गाड़ी चलाएंगे, लोगों को आंखों में दिक्कत होगी, आपकी गाड़ी भी नहीं दिखेगी, ठुक सकती है। और इसका भी लॉ है, आई एम नॉट श्योर लोगों को पता होगा नहीं पता होगा, हाई बीम पे नहीं चला सकते हैं आप ऐसे गाड़ी जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, आई थॉट इट वाज पेनल्टी भी मोर है। ऑफ एथिक्स। नो, पेनल्टी भी है उसकी, अच्छा। बट एग्जीक्यूशन कितना है? और क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं है, चलाते हैं लोग। मेनली एग्जीक्यूशन वाले। एग्जीक्यूशन इज द की। हाँ, सो एक्चुअली हाँ, यही प्रॉब्लम है। लॉ मेकर्स अलग होते हैं और एग्जीक्यूशन का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, हाँ, और वहां पे सिंक नहीं बैठ पाता। कई बार लॉज होते हैं और एग्जीक्यूशन नहीं होता, कई बार एग्जीक्यूशन शायद करना चाह रहे हो बट क्योंकि लॉ ही नहीं। आई फील इसके लिए हम एग्जीक्यूट करने वाले लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज उनको क्या एग्जीक्यूट करना है दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द टॉप। Right. लॉ मेकर्स ही बताते हैं। तो उनकी अगर इंटेंशन ही नहीं है तो एग्जीक्यूट करने वाला खुद से नहीं कर सकता इन सारी चीज़ों के एग्जीक्यूट। Right. जिस दिन ये चाहेंगे इम्प्लीमेंट करना, उसी दिन ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सैम्पल बेसिस पे करना होता है। कोई सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स को पनिश करने की जरूरत नहीं है। 2% इतना कर दिया, एक हवा फैल गई कि ऐसा होता है मार्केट के अंदर। आप देखिए अगले दिन से वेशन खत्म हो जाएगी, और स्टार्टिंग में बहुत पिंच करेगा, हर एक को पिंच करेगा, रियल एस्टेट डेवलपर्स को पिंच करेगा, लोगों को पिंच करेगा कि हम अपना ब्लैक मनी नहीं यूज कर पा रहे। लेकिन जब आप देखेंगे कि ये करने से कितना इनकम टैक्स इकट्ठा हो रहा है, एंड होपफुली कहीं ना कहीं अगर सरकार उसको ढंग से यूज करने लग जाए, वो करप्शन नहीं करने लग जाए, वो भी राधा रुकेंगे ही। कहाँ लगाएंगे? अगर एवेजन ही खत्म हो गई हाइपोथेटिकली, तो वो लगाएंगे कहाँ? उनको भी लगाना ही पड़ेगा लोगों के लिए। राइट। तो वो देश की benefits- तरक्की मतलब हाँ। 100x, हाँ, आप 1000x सोचिए ना, बढ़ स्कूल्स सकती आपके है। कितने बेटर हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स कितने बेटर हो सकते हैं, रोड्स कितनी बेटर हो सकती हैं, हमारा डिफेंस का जो इक्विपमेंट है, जो आर्मी को जो जो चीजें दी जाती हैं, सारी चीजें बेटर हो सकती हैं। मतलब कुछ जेबों से पैसा निकाल के तुमने पूरी सोसाइटी के लिए उसको लगा दिया। हाँ, और आई फील उस टाइम पे ना लोगों को टैक्सेस देने में नहीं दिक्कत होगी भी नहीं तकलीफ। होगी। अभी जो दिक्कत होती है ना, वो इट्स नॉट अबाउट कि टैक्सेस क्यों देने पड़ रहे हैं, इट्स अबाउट अगर मैं टैक्सेस दे रहा हूँ तो भी मेरे को मिल क्यों नहीं रही चीजें। That's true. Actually, that reminds me of a case. मैं डेनमार्क में, I was just in Denmark a few months ago. I was traveling with a lady next to me. We were seated in a train. And she started to like ask us, कहाँ से आए हो, ये वो, जो एक general conversation. बातों बातों में पता नहीं टैक्सेशन कहाँ से आ गया कि भाई, आई थिंक हम ही क्यूरियस थे क्योंकि हमने सुना है कि यूरोप में बहुत ज्यादा टैक्स है। तो हम ही ने पूछ लिया, आप लोग कैसा फील करते हो इसके बारे में? आई कैन नॉट टेल यू द रिएक्शन आई रिसीव्ड। आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी रिस्पॉन्डिंग लाइक दैट। मतलब कनाडा में भी लोग दुखी रहते हैं टैक्सेस से। दिस वुमन वाज वेरी हैप्पी। कहती है, वी आर वेरी प्राउड, वी पे टैक्सेस, गवर्नमेंट इज पेंडिंग फॉर अस, look at the infrastructure. My dad told me, she was herself old, but she started quoting her own dad
एंड शी स्टार्टेड टेलिंग कि कैसे उसके फादर ने उसको ये चीज बचपन में सिखाई थी कि टैक्सेस कभी दुखी होके मत देना. एक्चुअली, एंड आई सॉ अ स्टार्क डिफरेंस. हमारी जो अप्रोच है और जो उनकी अप्रोच है, बहुत फर्क है. ये बात आपकी, आई विल सेकंड दैट थॉट कि अगर हमको डेवलपमेंट उस लेवल का दिखने लग जाए, हमको ये ना दिखे कि ब्रिजेस गिर रहे हैं और रोड्स बनने के 1 महीने के अंदर खराब होके बिखरी पड़ी हैं, हमें ना दिखे, हम भी खुश होके टैक्स देंगे. हाँ, स्कूल्स की हालत हमें अच्छी लगे, हॉस्पिटल्स की हालत अच्छी लगे, हमारा जाने का मन करे, Cleanliness. क्लीनलीनेस अच्छी हो, Yeah. हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर रहे हो हम, लोग रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अगर दिखेंगी तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इंसान कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है टैक्सेस देने में. बट जब ये नहीं दिखता तो वो बॉदर करता है कि यार मैं इतना क्यों दूं, किसके लिए दूं, इवेजन ही कर लेते हैं यार, उससे अच्छा कल को जाके पकड़े जाएंगे तो देखी जाएगी. True. बट उसमें भी ना दिक्कत एक आती है, ये जो लोग गैम्बल कर रहे होते हैं, ये भी एक मेंटालिटी होती है कि चलो यार मैं नहीं दे रहा जितना टैक्स बनता है मेरे को 25 लाख रुपए देने हैं, मैं तो 4 लाख रुपए ही दूंगा, जब पकड़ा जाऊंगा देखी जाएगी. कितने ही पकड़े जाते हैं, 5%, 10%. Yeah. दिक्कत एक आती है कि कौन उस 5 में या 10 के अंदर आना चाहता है, क्योंकि जो आया उनका फिर एग्जाम्पल सेट करा जाता है. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक. मैंने मान के चलिए कोई एविएशन करी है, एवेट कर करके मैंने 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए बना लिए हैं, और ये मैंने 10 करोड़ रुपए किसी ना किसी तरीके से हवाला के थ्रू या कोई ना कोई तरीके से मैंने स्विट्जरलैंड पहुंचा दिए हैं. कल को इनको आइडिया लग जाता है कि मैंने 10 करोड़ रुपए वहां पार्क कर रखे हैं. इंडिया में अगर मैंने डिक्लेयर करा होता तो मेरे टैक्सेस कितने आते, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, बाकी 5-6 करोड़ बच जाते. वाइट मनी होता, जहां लगाना चाहता लगा सकता था. क्योंकि इन्होंने मेहनत करी है और मेहनत करके पकड़ा है कि मेरा स्विट्जरलैंड के अंदर 10 करोड़ का अमाउंट पड़ा है, कितना रिकवर करेंगे, 1.2 करोड़ ब्लैक मनी एक्ट सीधा ट्रिगर करेंगे. इनकम का 120%, इनकम जितनी है उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि अब पकड़े गए हो. तो वो 10 करोड़ तो रखेंगे, 2 करोड़ अलग से लेंगे, और अगर नहीं दोगे तो इंडिया में तुम्हारा घर है, गाड़ी है और एसेट्स हैं, सब बेच बाच के निकाल लेंगे. सो द पॉइंट इज कि अगर पकड़े गए, जो पकड़े जाते हैं, तो उनका एग्जाम्पल सेट करा जाएगा. वेदर यू वांट टू बी इन दैट पॉपुलेशन, वेदर यू आर इन एग्रीमेंट ऑफ दैट. हर एक का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है, जिनका होता है वो कर रहे होते हैं. अगेन नॉट एडवाइजेबल. लीगली जितना बचा सकते हैं मुझसे उतना बचाने की कोशिश करिए, थोड़ा सुकून की नींद आएगी. I agree totally. At the end of the day, like किसके लिए कर रहे हो ये सब? हाँ, इतना पैसा क्या करोगे? What will you do? क्या एक्स्ट्रा खा लोगे? नहीं, एक्चुअली यार पीस ऑफ माइंड से बढ़कर क्या ही है. हाँ. लाइफ तो ऑन अ डेली बेसिस हम सबकी कितनी साधारण होती है. बस सिंपल सा घर का खाना खाते हैं, बाहर का थोड़ी ना रोज रोज खाओगे, कितना ही खर्च कर लोगे. आई थिंक हाँ, जिस देश में रह रहे हो उस देश के लॉस को फॉलो करने में ही भलाई है तुम्हारी. टैक्सेस से दिक्कत है तो वॉइस करिए अपनी ओपिनियन को, उसको कम करवाने की कोशिश करिए. टैक्सेस डेफिनेटली ज्यादा हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. या तो उसको कम करवाने की कोशिश करिए. लेकिन अगर लॉ कह रहा है कि इतना देना है, उतना नहीं देके अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं तो सुकून से जी लूं, मैं बच के निकल जाऊंगा. हाँ, वो भाग दौड़ में ही लगे रहेंगे पूरी जिंदगी. हाँ. और जो मेन आपका काम है शायद वो ज्यादा ढंग से करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे तो ज्यादा कमा लेंगे, ज्यादा रिटेन कर लेंगे. Correct. There is an argument that taxes in our country are really very high compared to other countries of the world. ठीक है? And especially if you compare it to the services जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से रिसीव होती हैं. What do you have to say to that? डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आप बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को देखेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज को देखेंगे, तो वहाँ पे आपको देखेंगे हाई टैक्स रेट्स दिखेंगे. ऐसा नहीं है कम है, 30 to 50% वहाँ भी दिखेगा आपको, लेकिन वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग सर्विसेज दिख जाती हैं. जी. अब इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया इज वेरी हेवीली रिलायंट ऑन टैक्सेस एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. Correct. खर्चे तो देखिए इनकर करने ही है, उनके बिना काम नहीं चलेगा. 150 करोड़ की आबादी ऐसे नहीं जिंदगी अपनी चला पाएगी सरकार की इंटरवेंशन के बिना. सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू ही टैक्सेस है. टैक्सेस है, तो टैक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा हेवीली रिलायंट हैं, और इन्होंने टैक्सेस को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जीएसटी को, आईटी को, दोनों को ही, जो मेजरली इनके रेवेन्यू के स्ट्रीम्स हैं, कि लोगों के लिए उसको समझ पाना, पे कर पाना और उसके साथ एक पीस ऑफ माइंड के साथ रह पाना कि हाँ ठीक है इतना दे रहे हैं, चलता है या बनता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने हाई रेट्स देख के. जी. तो डेफिनेटली रेट्स को कम करने की जरूरत है. और रेट्स को कम करने के लिए ना मुझे लगता है कुछ तो बहुत ही आसान तरीके हैं जो हम अप्लाई कर नहीं रहे हैं एज अ कंट्री, और पता नहीं क्यों नहीं कर रहे. एक आर्ग्यूमेंट आपने ये भी सुनी होगी कि रेट यहाँ पे बहुत हाई है तो हम क्या करते हैं, दुबई चले जाते हैं, या कोई और कंट्री है, कोई टैक्स हेवन है, वहां चले जाते हैं, वहां इनकम टैक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको. कोई भी जो देश छोड़ के जाता है,
अकेले टैक्सेस के बेसिस पे नहीं जाता, अकेले टैक्सेस को देख के जा रहा होता ना, सारे लोग दुबई जा रहे होते, कोई यूएस नहीं जाता, कोई कनाडा नहीं जाता। जी। यूएस कनाडा के अंदर बहुत हाई टैक्स रेट्स हैं, Correct, इनकम correct. टैक्स भी, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत जी, हाई हैं। जी। तो वहाँ क्यों जा रहे हैं लोग? लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है, वहाँ पे रूल्स लोग फॉलो कर रहे होते हैं, एंड पीपल वांट दैट फॉर देमसेल्व्स। एक इनकम के बाद कि हाँ मेरे आसपास जो सोसाइटी हो सिविलाइज्ड हो। हमारे लिए एज अ कंट्री कितना आसान है, कुछ कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, आपको लगेगा कि यार ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं। कितना आसान हो जाएगा, हमारे जो टैक्सेस हैं ये भी कम हो जाएंगे, और रहने का जो रहन सहन का तरीका है ये भी आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कभी पहाड़ों पे अगर आप गए हो, 2 लेन मिलेंगी आपको गाड़ियों की, एक जाने की एक आने की, पतली पतली रोडें होती हैं। जी। इंडियंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी मेंटालिटी कैसी हो रखी है, जा रहे हैं आ रहे हैं लोग, हल्का सा कहीं जाम मिला रॉन्ग साइड चलने लग जाएंगे। 2 की 3 लेन, 3 की 4 लेन, 5 मिनट रुकने की मेंटालिटी ही नहीं है, जाम लगा देंगे। Patience नहीं है। पेशेंस बिल्कुल नहीं है, जाम लगा देंगे। और दिक्कत क्या होती है, मैं अगर लाइन में लगा भी हूं ना, मैं एक पल को सोच के चल रहा हूँ कि मैं लॉ को मानूंगा, मुझे दिखेगा कि लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं और आगे पुलिस वाला खड़ा हुआ, वो इनको निकाल रहा है, लाइन में मर्ज करके निकलवा रहा है। तो मेरे को लगेगा ना, पागल तो यहाँ पे मैं बना जो लाइन में लगा हुआ था इतनी देर से। तो अगली बार से मैं क्या करूंगा, मैं भी यही चीज करूंगा, मैं भी गलत उल्टा चीज जाऊंगा, सीख रहे हैं गलत चीज सीखूंगा। हर एक को ही दिमाग के अंदर ही बैठने लग गया। ऑल्टरनेटिव एक बताता हूँ, कल को अगर मेरे को दिखने लग जाए यही पहाड़ों पे जाने के टाइम पे या नॉर्मल रोड्स के अंदर भी ये चीज दिख रही होती है कि ऐसे लोग पीनलाइज हो रहे हैं, जो गए थे उल्टे उनको वापस उल्टा भेजा गया, उनको मर्ज नहीं करवाया गया, या उनको हैवीली पीनलाइज करा गया, वगैरह वगैरह। तो मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। जो लोग ये काम कर रहे होंगे, पहली बात वो क्या कर रहे होंगे, सरकार को पेनल्टी दे के सरकार के रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू पूल में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। या तो क्या होगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा या लोगों की कंप्लायंस बढ़ेगी। मैं दोनों से खुश हूँ। रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कल को ये टैक्सेस कम लेंगे, कहीं से कलेक्शन हो रही है, हाँ। उससे भी मैं खुश हूँ। और अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, लोग मानने लग गए हैं लॉ को, तो भी मैं खुश हूँ। क्यों? मेरे को डेली जो ड्राइव करना पड़ रहा है, ड्राइव करने के टाइम पे ये सब झेलना पड़ रहा है, नहीं झेलना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, अकेले टैक्सेस नहीं कम करना एक सोल्यूशन है। टैक्सेस कम करो, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको भी अगर आप बेटर कर देते हो, तो कितना ज्यादा ऑटोमेटिकली लोग खुश रहने लग जाते हैं एक देश के अंदर। वो सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं। तो इतनी जगहें हैं जहां पे सरकार कंप्लायंस इंक्रीज करके, चाहे वो रोड लॉज हो या कोई और चीज हो, कोई गंदगी फैला रहा है, कोई हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा, वगैरह वगैरह, इन चीजों पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस अगर दिखाने लग जाए, थोड़ा अच्छे से इंप्लीमेंटेशन करने लग जाए, तो या तो रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे जो टैक्स पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, या लोग कंप्लायंट होने लग जाएंगे, विच इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज हैप्पीनेस। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पे माई टैक्सेस अगर आसपास मेरी चीजें अच्छी हों। आई अग्री, रियली डू, रियली। हमको सुकून ढूंढने के लिए पहाड़ों पे जाना पड़ता है, हाँ, और क्योंकि हमारे आसपास नहीं है। हाँ, तो मतलब एक कॉल है एज अ कंट्री कि हम क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। वी डोंट नेसेसरली हैव टू रिलाई ऑन टैक्सेस। पनिश करिए ना। अच्छा, अब ऐसे पनिश होने के टाइम पे मान के चलिए आप भी रॉन्ग लेन में थे और आपके ऊपर 2000 का चालान लगाया गया है, आप बुरा नहीं मानेंगे। हाँ। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कॉज एंड इफेक्ट कि यार मैंने गलती करी थी, 2000 का चलो, चालान मिल कट गए गया, मेरे को अगली सजा। बार से नहीं हाँ। करूंगी ये गलती। हाँ। तो आप भी इस वाली कलेक्शन के लिए नहीं रोएंगे, जो कि नॉर्मली हम टैक्सेस के लिए रो रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे हमने कुछ गलत नहीं करा भाई। हाँ, क्यों किस बात इतने की taxes? सजा मिल रही हाँ, है? किस बात की सजा मिल कमाने रही है? की सजा मिल रही हाँ, है। तो ऐसे करिए ना, आपका देश भी कितना बेटर हो जाता है, लोग रहना भी चाहेंगे। शायद टैक्सेस देने के टाइम पे भी थोड़े बहुत खुश रहें कि ठीक है यार, हमारे देश के अंदर लोग चीजें मानते हैं, कायदे से सारी चीजें होती हैं, अच्छे से चीजें हो रही होती हैं। You'll feel more proud of your योर ओन कंट्री, योर ओन पीपल, एक कल्चर बन जाता है आई फील एक कंट्री का। I agree, totally, that's true। वाकई में अगर ये थोड़े थोड़े चेंजेस, सिर्फ सफाई में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, और क्योंकि गंदगी कर कौन रहा है, हम ही तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ी आ रही है करने के लिए। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, हम ही लोग इंडिया में अलग तरीके से बिहेव करेंगे और इंडिया के बाहर जाते ही वो सेम इंसान सेम चेंज जो कूड़ा अपने से 10 मीटर दूर जाके कूड़ेदान में नहीं फेंकने को तैयार था और ऐसी रोड पे फेंक रहा था, वो अपनी जेब में लेके घूमेगा 2 किलोमीटर तक अगर बाहर उसको कूड़ेदान नहीं मिला। क्यों? उसको पता है वहां पे दिक्कत होगी अगर उसने रोड पे फेंका तो। अब मन भी नहीं करता शायद इन इसीलिए लोगों मन भी का। नहीं करता। हाँ। साफ दिख रहा होता है, पता है हाँ, कंप्लायंसेस हाँ। करनी है, तो ऑटोमेटिकली आप करने लग जाते हैं। इंसान सेम है, सोच का फर्क हो जाता है। वो है ना, ब्लेम द गेम नॉट द प्लेयर। हाँ, करेक्ट। आपको जीएसटी और अदर टैक्स लॉज में ऐसा लगता है क्या कि आर दे इजी टू अप्लाई फॉर बिजनेसेस? नहीं, इजी तो देखिए कहीं से भी नहीं है। हमारे टैक्सेशन के जो लॉज हैं, आईटी लॉ, आप फिर भी एक पल को एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि ये तो इतना पुराना है, तो पुरानी चीज़ें यहाँ पे कुछ कुछ कंटेंड हैं जो कम्प्लेक्सिटी बढ़ा रही है। जीएसटी लॉ तो अभी आया है, 2017 के अंदर आया है, उसके अंदर क्यों कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्यों इतने सारे एचएसएन कोड्स हैं, इतने सारे कोड्स के अंदर ढूंढो, हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग रेट। अभी पॉपकॉर्न की आर्ग्यूमेंट होकर ख़त्म हुई है कि ऐसा होगा तो ये रेट होगा, वैसा होगा तो वो रेट होगा।
देखिए, इतनी कम्प्लेक्सिटीज अगर आप बढ़ाएंगे कोई भी लॉ के अंदर, तो लोगों के लिए समझ पाना है, नेचुरली इम्प्लीमेंट कर पाना, दोनों चीजें कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होंगी। लोग ना चाहते हुए भी नॉन कंप्लायंस वहां पे कर रहे होंगे और कल को सफर करेंगे। सफर कैसे करेंगे? मेरे को आपने 1.5 लाख प्रोडक्ट्स दे दिए हैं HSN कोड के, और मेरा प्रोडक्ट 3 के अंदर फिट हो रहा है। मेरे को नहीं पता है टेक्निकली कि मैं कहाँ पे आता हूँ। मैंने काम को चालू करा है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के रेवेन्यूज के अंदर कोई मुश्किल ही कंसल्टेंसी लेने की प्रोएक्टिवनेस दिखा पाता है। मैंने काम चालू कर दिया, मेरे को लगा मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे आता है, या इंडस्ट्री के अंदर कोई और यही प्रोडक्ट का रेट पकड़ के बैठा है, मैंने 5% इस पे देना चालू कर दिया। हाँ 2 साल के बाद नोटिस आता है कि भाई तुम गलत रेट पकड़ के बैठे हो, रेट 5 नहीं था 18 था, तो ये 13 का गैप मैं दूंगा, क्लाइंट नहीं देगा। क्यों हो रहा है? इतनी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे ऐड कर रखी है। ये तो चलिए GST लॉ की बात हो गई। IT लॉ का एग्जांपल देता हूँ, TDS, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट हो सकता था। आइडिया क्या है? पे करने के टाइम पे कुछ ना कुछ पेमेंट को रोक लो, काट लो, उस इंसान को हम क्रेडिट दे देंगे, लेकिन सरकार को आइडिया रहेगा किसको क्या दे रहे हो। कल को सरकार को आइडिया रहेगा कि वो इंसान इसको इनकम की तरह दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। दी आइडिया इज प्रीटी सिंपल, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो सकता है। बट आपने 50 सेक्शन बना दिए हैं, ये पेमेंट हो रही है तो ये, वो पेमेंट हो रही है तो वो। बंदा काम करे, हर पेमेंट करने के टाइम पे ये छांटता रहे कि मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने गलत छांट लिया और कम रेट पे काट लिया TDS, तो एक्सपेंस जैसे हो सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, फी आ सकती है। तो घूम फिर के ईज ऑफ बिजनेस की जब बात होती है, तो सिंपल सा पॉइंट यही आता है कि मैं अपना मेन काम करूं, ये सारी चीजें देखते रहो जो रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब सरकार को भी या तो रिक्वायर्ड हो ना कि हम तो पता नहीं कितने सेक्शन बनाएंगे तो फायदा होगा, तब तो करो भी। सरकार को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो जहाँ पे फायदा नहीं हो रहा है, कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करा जा सकता है, क्यों नहीं करा जाए? रिमेम्बर हमने ये सवाल एक बार अपने स्टूडेंट डेज में अपने प्रोफेसर से पूछा था कि सर टैक्स की लैंग्वेज इतनी टफ क्यों है, समझ क्यों नहीं आता, आपको क्यों समझाना पड़ता है हमें? तो उन्होंने मजाक में यही जवाब दिया था कि इसकी लैंग्वेज टफ है तभी तो तुम कमाओगे, तुम किस लिए कमा रहे हो, इसीलिए तो कमाओगे, खुश रहो, टफ है। करेक्ट। वो तो चलिए स्टूडेंट्स को एक लुभाने का तरीका हो गया, बट कहीं ना कहीं देखिए सच्चाई तो सुनना ही सच्चाई जरूरी है, इसमें। वो सच्चाई है, बट द टैक्स laws do not need to be as complex as they are as of now. I'm not saying कि वो बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे, 4 पेजेस के हो जाएंगे। अगेन 150 करोड़ की आबादी है, इतने लोग इतने टाइम की इनकम कमा रहे हैं, रेवेन्यू कमा रहे हैं, अतरंगी तरीकों से एवेजन करने की कोशिश करते हैं, और उसको रोकने के लिए सरकार को लॉ बड़ा बनाना पड़ेगा। पर जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ दिखा है कि इतना आपने अननेसेसरली कुछ चीजों को कॉम्प्लेक्स कर रखा है, वहाँ उनको हटा दीजिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे अलाउंस देते हैं, इतनी छोटी छोटी अलाउंसेस 100 रुपए की पर मंथ, 200 रुपए की पर मंथ, तो 100-200 रुपए इनकम में हटा के, और वो भी इतने सालों से चलती आ रही है, हर साल चेंज होता है लॉ। इनकम टैक्स का पेपर वाज सच अ स्ट्रेस, यू रिमेम्बर? इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोचिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद हमें भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कंफ्यूजन हो जाती है कोई पेमेंट्स के टाइम पे कि यहाँ पे कौन सा TDS का सेक्शन ट्रिगर होगा। अगर हमें बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन हो जाती है, तो सोचिए जो लेमैन है उसको नहीं आ वो सकता बेचारा समझ किस में। प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या उसके थॉट्स चल रहे हैं। पेमेंट आ रही है, पेमेंट करनी है, उसको डर लग रहा है कि यार मैं IT लॉ में कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रहा हूँ, GST लॉ के अंदर तो नहीं कर रहा हूँ, इतने तो लॉज हैं, इतने तो लॉज हैं। तो है जेन्युइन दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं है, बट होपफुली धीरे चल ही धीरे रहा है चीजें सही हो। काम तो चल ही रहा है। चल ही रहा है, सोच की आई थिंक आगे बढ़ रहे हैं सारे। इसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस भी तो होता होगा। डेफिनेटली होता है, मैं बता रहा हूँ ना, काफी लोग कंप्लायंस ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते, उनको जेन्युइनली नहीं पता कि पे क्या करना है। वो कहते हैं कि भाई जितना पे करना है बता दो, हम पे करने को तैयार हैं। सरकार कहती नहीं नहीं, हम नहीं बताएंगे, हमने तुम law- पहले ये 100 सेक्शन पढ़ लो। हाँ, हमने लॉ बना दिया, तुम खुद पढ़ो, खुद इंटरप्रेट करो, हमारा क्या मतलब था, हमारा ये लॉ लिखने के टाइम पे क्या मीनिंग होगा, क्या इंटेंशन रही होगी, वो तुम जानो, और तुम जान के पे करो। अगर कल को जाके तुमने गलती करी तो हम पकड़ेंगे, टैक्सेस निकलवाएंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी सब निकलवाएंगे। Actually, yeah, that reminds me from my student days कि प्रोफेसर भी हमारे यही बोलते थे कि कोई भी सेक्शन को पढ़ने से पहले उस सेक्शन की लैंग्वेज में गवर्नमेंट का इंटेंट ढूंढो, इंटेंशन क्या है। ये कितनी मुश्किल चीज है ये, अगर आप सोच के देखो। We're talking about sentiments of an authority. क्यों बनाया गया होगा ये? नामुमकिन है समझ पाना एक आम आदमी के लिए। लेमैन के लिए डेफिनेटली, मतलब उसके पास दिन में करने के लिए और 50 चीजें हैं, बिजी इतना है टाइम वो, नहीं लगा सकता हाँ, यहाँ of पे। course। आज की डेट में प्रॉब्लम ये नहीं है टाइम कहाँ गुजारूं, टाइम प्रॉब्लम ये है कि दिन निकल जाता है पता नहीं चलता, ये प्रॉब्लम है लोगों की। करेक्ट।
Okay, interesting question. What is your take on removing income tax completely? ओके क्योंकि कुछ देशों में है ऐसा. देखिए, जिन देशों में इनकम टैक्स उन्होंने लगा ही नहीं रखा, उसके पीछे का ना रीजन समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं हमें. जी. सोच के बड़ा लुक्रेटिव लगता है इनकम टैक्स जो है हटा दो. मुझे मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है दैट ये हो सकता है देश के लिए हमारे फायदेमंद हो, पर हो सकता है बहुत ही खतरनाक हो. क्यों खतरनाक हो? एग्जाम्पल देता हूँ मैं. इनकम टैक्स जो है ना, वो मेजरली जो ज़्यादा इनकम कमा रहे होते हैं उनकी इनकम को टारगेट कर रहा होता है. स्टैट्स को अगर आप देखेंगे ना, तो स्टैट्स के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगी कि हमारी एम्प्लॉय पॉपुलेशन है, उसमें 90% से ज़्यादा लोग, रफली 90% लोग 20,000 रुपये महीना, उससे ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं. सोच के देखिए, उनको इनकम टैक्स एक्ट कभी टारगेट कर रहा है? नहीं कर रहा. एग्रीकल्चरलिस्ट जितने भी हैं हमारे फार्मर्स हैं, उनको टारगेट कर रहा है? नहीं कर रहा. नहीं. तो मोस्टली जो लोग हैं वो टारगेट हो ही नहीं रहे. 6-7 लाख तक की जो भी इनकम कमा रहा है, अगेन उसके एम्बिट में नहीं आ रहा है. आईटी लॉ हटाने का लोगों को परसेप्शन का फायदा होगा. उनको लगेगा कि हाँ आईटी हट गया है, चाहे वो दे नहीं रहे थे, लेकिन उनको खुशी होगी कि कुछ है जो कल को नहीं देना पड़ेगा. हाँ. फायदा असली में किसको होगा? उस उद्योगपति को फायदा होगा जो हजारों करोड़ों कमा रहा है और उसको अभी देना पड़ रहा है. हजारों करोड़ों में 300-400 करोड़, 200 करोड़ ये देना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, Makes क्योंकि वो sense. छुपा नहीं सकता. वो कमा ही इतना रहा है. हाँ. कहाँ छुपाएगा? कैसे छुपाएगा? कब तक छुपाएगा? कब तक छुपाएगा? तो आईटी हटा के आपने क्या कर दिया? उनके लिए ये Enable पूरा कर 1000 दिया. करोड़ उनको इनेबल कर दिया कि रखो. दिक्कत किन के लिए हो गई? सरकार को खर्चा तो उतना ही करना है, रोड अभी भी उतनी ही बनेगी, आर्मी को अभी भी उतना ही पे करना है, पुलिस को उतना ही पे करना है. ये कलेक्शन कहाँ से होएगी? जीएसटी से होएगी. अभी अगर जीएसटी 10 लाख करोड़ दे रहा है, आईटी 10 लाख करोड़ दे रहा है, तो अब जीएसटी को पूरे 20 लाख करोड़ का भार उठाना पड़ेगा. कौन उठाएगा? आप उठाओगे, मैं उठाऊंगा. और हमारे उठाने का तरीका क्या होगा? जो 1000 करोड़ कमा रहा था वो कितना खर्चा कर रहा है? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ अपनी इनकम का 10-20%. और 10-20% पे जीएसटी आ जाएगा, इंक्रीज भी हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मल इंसान के बारे में अगर आप बात करेंगे, वो अपनी इनकम का 50, 60, 30, 90% डिपेंडिंग ऑन कितनी इनकम है उतना स्पेंड कर रहा होता है. कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, 8 लाख रुपए लगा देता है, उस 8 लाख पे जीएसटी का रेट डबल हो गया है. सोचो कितना खतरनाक इम्पैक्ट है उस इंसान के लिए. मतलब एक तरीके से, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, इनकम टैक्स अमीर लोग दे रहे थे, हाँ. मगर जीएसटी सब दे रहे हैं. जीएसटी सब दे रहे हैं. या और सब में भी दिक्कत क्या है? अमीर इंसान अपनी इनकम के बहुत छोटे पार्ट पे दे रहा है जीएसटी, क्योंकि उतना खर्चा होता ही नहीं है. वो तो मोस्टली सेव कर रहा है. हाँ, क्योंकि भाई कितना खर्च कर लोगे कितना यार खर्च कर महीने लोगे? में, कितना हाँ. ही स्पेंड कर लोगे. तो उसके 1000 करोड़ में 200 करोड़ पे आने वाला जो रेट था वो आपने डबल करा है जीएसटी से कलेक्शन करने के लिए. और गरीब इंसान के लिए जो अपने 5 लाख रुपए पे, 2 लाख रुपए पे कुछ भी नहीं पे कर रहा था इनकम टैक्स, उसका इनकम टैक्स तो हटा दिया, पहले भी नहीं दे रहा था, पर जीएसटी क्या कर दिया? डबल कर दिया. जो उसकी इनकम का 80% है, या उस पे रेट डबल हो गया. दिस इज अ वेरी नाइस टेक, राइट. तो आईटी लॉ कहने के लिए, अगेन पब्लिक अपीजमेंट के लिए, देखिए बहुत सारी चीजें कही जाती हैं कि ये हटा देंगे, वो हटा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे. सोचा करिए कि आप पे इम्पैक्ट क्या आएगा. सोच के लग रहा है कल को इनकम कमाऊंगा तो आईटी नहीं देना पड़ेगा, वो कल को नहीं देना पड़ेगा, जीएसटी आज देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट डबल को हो तो भाई जाएगा. पैसा चाहिए ना हाँ. देश चलाने के लिए. हाँ. अब एक आर्ग्यूमेंट आती है कि अगर इंडिया आईटी हटाएगा और ये दिक्कतें आएंगी, तो बाकी देशों ने कैसे हटा रखा है? नहीं हटा रखा. आपने ये सुना होगा दुबई के अंदर इनकम टैक्सेस नहीं है. जी. ऐसा नहीं है, दुबई में है इनकम टैक्स. कैसे है? इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स है वहाँ पे कंपनीज को पे करना होता है. जैसे इंडिया में भी अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स कलेक्शन जो होती हैं, इंडिविजुअल्स रफली उतना ही दे रहे हैं जितना कंपनीज दे रही हैं. वहाँ पे कंपनीज को देना पड़ता है. 0 to 15% का रेट है, कुछ इनकम के लिए कुछ के लिए 9%, Right. कुछ के लिए 15%, लेकिन कंपनीज को देना पड़ता है. और जी. वो क्यों कम कर पाते हैं? अगेन टैक्सेस पे उनकी रिलायंस इतनी नहीं है, उनके लिए और बहुत सारी सोर्सेज निकल के आती हैं. ऑयल है, उनका टूरिज्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है. टूरिज्म क्यों फ्लरिश करता है? लोगों में सिविक सेंस है, एक रूल फॉलो करने की मेंटालिटी है, देश बहुत वेलकमिंग कहीं ना कहीं लगता है टूवर्ड्स टूरिस्ट. तो उन सारी चीज़ों से उनके रेवेन्यू आ जाते हैं. अगेन खर्चा करना है, रेवेन्यू आ रहा है, टैक्सेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही. खर्चा हमें भी करना है, रेवेन्यू और जगहों से अगर नहीं आएगा, टैक्सेस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे. पर देश बहुत छोटा है. यूएई छोटे- अगर स्पेसिफिकली बात करें, छोटा है देश. छोटा ठीक है, वो तो फिर कंपैरेटिवली हमारी कलेक्शंस भी ज़्यादा होनी चाहिए ना, थ्रू जीएसटी या फिर बाकी अलग अलग जगहों से. वो तो जीडीपी पे आपका डिपेंड करेगा कितनी कलेक्शंस आ रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस से. दैट शुड मेक अप फॉर इट. बट अगेन वी हैव टू रिड्यूस आवर रिलायंस ऑन टैक्सेस कहीं ना कहीं से, ऐसे ही अलग अलग सोर्सेज से. और ज़्यादा मुझे लगता है हमें टारगेट वैसी जगह करनी चाहिए जिनको पे करने के टाइम पे लोगों को बुरा ना लगे. जैसे वो एग्जाम्पल दिया था मैंने पेनल्टीज का, देंगे भी खुशी से, और अगर नहीं देना पड़ रहा तो सोसाइटी बेटर हो रही है. ऑटोमेटिक इंडिकेटर है जी कि वो जी. पेनल्टीज नहीं देनी पड़ रही, राइट. तो वो भी खुशी देगी. क्योंकि ऑटोमेटिकली मुझे लगता है बहुत जल्दी कंप्लायंस बढ़ जाएगी. हाँ डेफिनेटली बढ़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन की देरी है. ओके,
what are the best practices that you can suggest to people जो notices, raids, इस तरह की चीजों से completely बचना चाहते हो? ऐसी कौन सी practices हो सकती हैं जो हमें ensure कर देंगे हमें कभी notice नहीं आएगा? देखिए आपको अगर सरकार रिक्वायर नहीं भी कर रही है ना अभी कि खाते मेंटेन मत करिए, लेट्स से दे आर नॉट रिक्वायरिंग यू कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, आई वुड से मेंटेन करिए. यू शुड हैव एन आइडिया कि कल को जाके समबडी ओपन्स अप योर बैंक स्टेटमेंट्स या फिर कल को आपकी एसेट्स क्वेश्चन करे कि भाई 2 करोड़ की एसेट्स हैं, ये घर है, गाड़ी है, कोई और एसेट है, कहाँ से आई? तो यू शुड बी एबल टू स्टैंडशेट. बिल्कुल एक एक पाई का हिसाब देने की जरूरत नहीं है, बट मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि ये यहाँ से आई है. एज लॉन्ग एज यूर इन कंट्रोल ऑफ दैट कोई दिक्कत नहीं है. जो नोटिस आता है, जो रेट पड़ती है, जो समन्स आते हैं, हर एक का रिप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. एवेजन अगर नहीं कर रहे हैं ना तो फालतू में डरने की जरूरत नहीं है कि कल को नोटिस आ गए, रेट पड़ गई तो क्या होगा. कुछ भी नहीं होगा. पर अगर आप नहीं आंसर दे पाएंगे, उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से आया, नहीं जवाब दे पा रहे हैं और जेन्युइन है तो भी दिक्कत आएगी. क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है ओनर्स का कि कल को अगर डाउट हुआ कि ये क्या है क्या नहीं है तो प्रूव किसको करना पड़ेगा? हमें टैक्स पेयर्स को बताना पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं है. नहीं बता पाएंगे, वो मानेंगे आपने इवेजन करी है चाहे नहीं करी हो, एंड देन दे विल पीनलाइज यू. तो डॉक्यूमेंट्स अपने कोशिश करके प्रॉपर रखिए. ओके, ठीक है, फाइन. क्या आपने क्लाइंट्स ऐसे नोटिस करे हैं जो रेट्स के डर से या नोटिसेस के डर से कोई रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हो? कोई है ऐसा इंटरेस्टिंग केस? हाँ, है कुछ केसेस ऐसे. सो देयर वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन जो अगेन बहुत ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं. जितने टैक्सेस आते हैं सारे के सारे पे कर रहे थे. हर साल उनकी इनकम जो है इंक्रीज ही हो रही थी, बट 2 सालों के अंदर बैक टू बैक उनकी इनकम गिरी. बिजनेस है, होता रहता है, ऊपर नीचे इनकम होते रहती है. अब 2 साल जब उनकी इनकम गिरी, पहले साल जब उनकी इनकम गिरी और अगले साल ऑलमोस्ट लॉसेस को ही टच करने लग गई, तो उनका एक सवाल आया कि सर मैं इतने टाइम से इनकम टैक्सेस दे रहा हूँ, हेवीली इनकम टैक्स दे रहा हूँ, जीएसटी दे रहा हूँ, अब मैंने इस साल अगर लॉसेस दिखा दिए जो कि उन्होंने एक्चुअली इनकर करे हैं, तो कल को कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा? ये कहने लग जाएंगे भाई इतने इनकम टैक्सेस देने वाला एकदम से क्या कर रहा है, लॉसेस क्लेम कर रहा जेन्युइन है, कंसर्न है. तो रेट तो नहीं मार देंगे? हाँ. मैंने कहा सर अगर वो रेट मार भी देंगे तो रेट के डर से अपने लॉसेस को प्रॉफिट थोड़ी दिखाओगे आप यहाँ पे फालतू में क्यों दोगे टैक्सेस? 1 रुपए नहीं देने हैं. लॉसेस आ रहे हैं, लॉसेस ही रिपोर्ट करेंगे. और अगर कल को नोटिस आए, रेड पड़ी, कुछ भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, खा नहीं जाएंगे वो आपको. रेड के अंदर क्या कर रहे होते हैं? प्लांट नहीं कर रहे होते पैसे. वो अगर होते हैं, एवेजन कर रखी होती है और उसको पकड़ लेते हैं तो दिक्कत आती है. अगेन डॉक्यूमेंटेशन सही है, सही से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ पे आपने प्लानिंग नहीं कर रखी, अवॉइडेंस नहीं कर रखी, तो फालतू में डर के ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है. पैसा है, मेहनत का पैसा है, रखिए. आजकल एक नई कंसर्न आई है. यूपीआई इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोड्स ऑफ पेमेंट दीस डेज, राइट? एंड उसने पूरा मतलब ऐसे टेक ओवर कर लिया इंडिया के ट्रांजैक्शंस के सिनेरियो को. तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि मतलब ये जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, टू मेनी इन नंबर, इसको मतलब अगर कल को कोई नोटिस रिसीव हो किसी को, वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि कौन सा पेमेंट कहाँ से आया? मतलब हाउ डू यू कीप ट्रैक ऑफ दैट? अगर कोई छोटा बिजनेस है और दिन भर में 100 रुपए और 200 रुपए और 120 रुपए के 1000 ट्रांजैक्शंस हैं, तो सोचो 30 दिन के कितने हो गए और फिर साल के कितने हो गए. हाउ डू यू लाइक डील विद दिस प्रॉब्लम? इट्स अ जेन्युइन कंसर्न फॉर स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली. करेक्ट. अब ये केस ऐसा हुआ भी था, आपने शायद पढ़ा होगा, एक गोलगप्पे वाले की जो यूपीआई पेमेंट्स हैं जो उन्होंने रिसीव करी हैं वो 40 लाख से ज्यादा की दिख गई. हाँ. और उनको खुद को शायद आइडिया नहीं था कि बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर ये उथल पुथल मच रही है. तो 40 लाख से ज़्यादा होती है, जैसे मैंने बताया था, जीएसटी आपका ट्रिगर हो जाता है और डिपार्टमेंट ने कहा है इससे ज़्यादा का रेवेन्यू आ रखा है, आपने दिखा नहीं रखा, आ जाइए एम्बिट में आ गए हैं, तो ये दीजिए, खातिरदारी करते हैं. नाउ अब इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर द ऑडियंसेस. पहला हो गया रिसीट्स, दूसरा हो गया पेमेंट्स. दोनों के लिए क्या क्या करना है. देखिए जो रिसीव कर रहे हैं, यूपीआई रिसीव करा है, इनकम का पार्ट है, ये तो दिखाएंगे ही, इनकम में दिखा रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं है. थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. इनवॉइसिंग जो है इतनी प्रॉपर नहीं भी हुई, सरकार कुछ नहीं कहेगी, क्यों? दिखा रहे हो इनकम की तरह, टैक्सेस दे रहे हो, और क्या चाहेंगे. पर जो इनकम नहीं है, मान के चलिए आपके फादर हैं, उन्होंने 5000 रुपये दे दिए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, दिवाली पे दे दिए, होली पे दे दिए, कभी भी दे दिए, या कोई और पेमेंट आ रही है जो टैक्सेबल नहीं होती है, टैक्सेबल नहीं है, फादर ने अगर आपको दिया है, भाई बहन ने कुछ दिया है, स्पाउस ने दिया है, तो इनको नोट करिए, अच्छे से नोट करिए. क्योंकि कल को अगर डिपार्टमेंट कहता है 3 साल पहले किसी ने यूपीआई करा था और आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके ही फादर ने करा था, वहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं आ रहा, उन्होंने किसी रैंडम अकाउंट से करा था, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ये इनकम मान लेंगे और इनकम मान के टैक्सेस दिलवाएंगे. तो उसको रिकॉर्ड करिए, कहीं ना कहीं मेंटेन करिए कि मेरे अकाउंट के अंदर ये हिट कर रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पर ये इनकम नहीं है, क्या है ये.
तो जो भी रिसीट्स आ रही होती हैं उनमें ध्यान रखा करिए। इनकम तो रिपोर्ट कर ही रहे हैं, जो इनकम नहीं भी है उनको अच्छे से नोट करिए क्या है क्या नहीं है, ताकि कल को बता पाएंगे अगेन कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात रही पेमेंट की, पेमेंट के लिए कभी नहीं कहेंगे, पेमेंट के लिए परेशान नहीं करेंगे आपको कि ये पेमेंट क्या है। क्यों? पेमेंट क्लेम करनी होती है इनकम कम करने के लिए। हाँ। तो ये कहेंगे ठीक है आपको पता नहीं है, कुछ नहीं होता, मत क्लेम करो। हमारा तो कोई फायदा है, नुकसान नहीं है सर। हाँ, तो उसमें हमारा फायदा है कि हम क्या करें, जो पे कर रहे हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड होता है उसका अगेन हिसाब किताब रखें, ताकि कल को क्लेम कर पाएं। ज्यादा क्यों देने हैं टैक्सेस? जितनी इनकम आ रही होती है उतनी भी देंगे, उतना ही काफी है, उतना अगर कर दें तो। करेक्ट। तो उसके लिए मैं एडवाइस क्या करता हूँ, मिनिमम 2 अकाउंट्स अपने मेंटेन करा करिए। जो बिजनेस के खर्चे होते हैं, रिसीट्स होती हैं, वो एक अकाउंट के अंदर आ रही हैं। हाँ। और जो पर्सनल जो भी इनकर कर रहे हैं वो दूसरे अकाउंट के अंदर है, ताकि एक बेसिक यहाँ पे डिविजन तो यहीं पे हो जाए कि खाता बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़े। उसके साथ भी अगर एक स्टेप आगे जाके और अच्छे से करना चाहते हैं मेंटेन, तो अगर इतना भी हिसाब रख लेंगे क्या पेमेंट है, क्यों आ रही है, क्यों जा रही है, और बढ़िया। उतना नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम इतना तो करिए ही करिए कि 2 अलग अलग अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं आप, बिजनेस का अलग, पर्सनल अलग। हाँ, दिस इज एक्चुअली इजी आल्सो। वेरी इजी। इसमें तो कुछ करना भी नहीं है ना, आप कॉन्शियसली एक एफर्ट डालना पड़ेगा कि हाँ बिजनेस की पेमेंट्स यहाँ से कर रहा हूँ, रिसीव यहाँ पे कर रहा हूँ, पर्सनल अलग से कर जैसे रहा हूँ। कितने सारे लोग ईमेल आईडीज अलग अलग बना लेते हैं, हाँ। पर्सनल के लिए अलग, और जो आपका बिजनेस से रिलेटेड क्वेरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं, उसकी ईमेल आईडी आप अलग कर देते हो। ये मैं भी फॉलो करती हूँ, इट हेल्प्स अ लॉट। बाइफिकेशन होता है, पता होता है किसी चीज का जवाब ढूंढना है तो मुझे कौन सी मेल आईडी पे जाना है। सिमिलर अप्रोच हो सकती है बैंक अकाउंट्स के लिए भी। करेक्ट, क्योंकि आजकल ना ऐसा भी होता है कि हमें क्लाइंट्स कहते हैं कि हमारा टैक्स जो भी है कंप्यूट करके बताइए, और उसके लिए सामने स्टेटमेंट रख देते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट, और उनको खुद को आइडिया नहीं है, 3000 ट्रांजैक्शंस हैं और वो चाहते हैं कि हम कंप्यूट करके बताएं, नहीं बता पाएंगे। डिपार्टमेंट के साथ भी ये दिक्कत आ रही होगी, डिपार्टमेंट को भी आइडिया नहीं है, आपको भी आइडिया नहीं है। डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्रेडिट्स को ऐड करेगा और कहेगा ये आपकी इनकम है, नहीं है तो प्रूव करो। क्या करोगे? दोनों को ही आइडिया नहीं है, और डिपार्टमेंट के फेवर में जाएगा ये। यस यस यस, क्योंकि ओनर्स आप पे है। ओनर्स आप पे है। राइट। लोग चैरिटीज और एग्रीकल्चर को यूज करते हैं टैक्सेस को इवेट करने के लिए, ऐसा हमने कई बार सुना है। तो पहली बात तो ये कैसे होता है, और दूसरी बात इसको गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है? ओके, मतलब लोग कैसे कर पा रहे हैं? तो देखिए दोनों में एविएशन के जो मॉडल्स ऑपरेंडी होते हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। मैं दोनों का ही आपको एक आइडिया देता हूँ पूरे ऊपर से। एग्रीकल्चरल इनकम में सरकार ने आज के टाइम पे कर क्या रखा है, कोई लिमिट नहीं लगा रखी। जितना भी कमा रहे हैं, चाहे वो 1 लाख रुपए है, 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। और यहीं से दिक्कत चालू होती है। क्यों दिक्कत चालू होती है? जो इंसान रियलिटी में फार्मर है और इनकम कमा रहा है, वो शायद इतनी कमा ही नहीं रहा कि उसको एग्जिबिशन का फायदा हो रहा हो। वो वैसे भी अगर 6-7 लाख रुपए कमा रहा होगा साल का, 10 लाख रुपए कमा रहा होगा, एग्जिबिशन की जरूरत नहीं होने। मैं कहता हूँ अगर एग्जिबिशन की जरूरत है भी तो देयर शुड बी अ कैपिंग ऑन इट, कि 1 करोड़ तक की इनकम पे, 50 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्सेस नहीं आने वाले हैं, एग्जेम्प्ट होगा, बट कोई लिमिट नहीं है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या होती है, मैंने मान के चलिए कोई बिजनेस बना रखा है जहाँ पे कैश आता है, कैश की रिसीट्स होती हैं। मान के चलिए मूवी हॉल है मेरा, और मैं वहां से हर साल 200 करोड़ की बिलिंग कर रहा हूँ। मैंने एक फार्म भी खोल दिया है, वहां पे रियलिटी में कितने की इनकम आ रही है, 5 करोड़ की। अब मेरे ऊपर है कि मैं सच यहाँ दिखाऊं कि वहाँ 5 करोड़ की है, यहाँ 200 करोड़ की है, या मैं ये दिखाऊं कि वहाँ 150 करोड़ की इनकम है और यहाँ पे 55 करोड़ की इनकम है। समझ रहे हो आप कि दोनों से ही कैश आ रहा है। अब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं लालच आएगा कि यार वहाँ अगर मैंने 150 करोड़ की इनकम दिखा दी, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और दोनों ही मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, दोनों ही व्हाइट मनी है। पर सरकार को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा कि वहां पे मैंने रियलिटी में इतने का काम नहीं करा है। तो व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल, और रादर आई शुड से, जो लोग टैक्स एवेजन कर रहे होते हैं, जितने भी हैं, वो इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठा रहे होते हैं कि कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। पर जैसे आपने कहा कि इसको हटाने का कोई तरीका है क्या, हटाने का तरीका सिंपल सा है, एग्जिबिशन हटानी नहीं है। हटा के शायद नॉर्मल फार्मर्स को ये लगेगा कि उनका कोई ना कोई बेनिफिट है जो कि छीना जा रहा है, मत हटाइए, लिमिट लगा दीजिए, कोई ना कोई कैपिंग लगा दीजिए। 1 करोड़ तक छोड़ने को तैयार हैं, 2 करोड़ तक छोड़ने को तैयार हैं। ये तो नहीं होगा कि कोई 100 करोड़ की इनकम यहाँ दिखा के एवेजन कर रहा है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, बड़ा बिजनेसमैन है, कोई भी इंसान क्यों ना हो। और जो हमारे जैसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, उनको उसका बर्डन बेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि अगेन खर्चा इनकर करना है, पैसा कहीं से तो आएगा, वो नहीं दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं। ये हो गया एग्रीकल्चर। और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की अगर आप बात करेंगे तो उनके अंदर भी लूप होल क्या निकल के आता है, उनकी पूरी इनकम सरकार कहती है एग्जेम्प्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड वो खर्चा कर रहे हैं, चैरिटी के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। तो मान के चलिए मैंने इंस्टीट्यूशन खोला है जो क्या करता है, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें देता है। अगर मैंने करंट ईयर में डोनेशंस के थ्रू 200 करोड़ इकट्ठे करे और मैंने पूरे लगा दिए, वैसे एक लिमिट होती है लेकिन मान के चलिए मैंने पूरे लगा दिए 200 करोड़ किताबें खरीदने में बच्चों के लिए,
सरकार कहती है कुछ भी इनकम में ऐड नहीं होगा, कोई टैक्सेस नहीं देने। अब यहीं पे आता है लूप होल। मैं वो 200 करोड़ रियलिटी में लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ, या सिर्फ दिखा रहा या हूँ। सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो अगर मेरे दिमाग में विजन आती है तो लोग क्या करने लग जाते हैं, वो मान के चलिए मेरे पास कोई इंसान आता है, 1 करोड़ की इनकम है, मैं पूरी डोनेट कर देता हूँ। डोनेट करके मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन से ये 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए जो भी मैं दे रहा हूँ ये मैं निकाल लूंगा। आप मेरे को पे कर देना, आप ये दिखा देना कि आपने क्या करा है, बच्चों को किताबें बांटी हैं। सरकार नहीं पकड़ पाएगी शायद। आप ये दिखा के क्या कर लेना, खर्चा क्लेम कर लेना, कोई टैक्सेस नहीं देने होंगे। और मैं क्या करूंगा, मैं सरकार को दिखाऊंगा 1 करोड़ का मैंने क्या कर दिया है, डोनेशन कर दिया है। रियलिटी में करा है नहीं, वाइट में बैंक के थ्रू दे दिया, ब्लैक में कैश के थ्रू निकाल लिया। पर ये डोनेशन दिखा के मैं क्या करूंगा, टैक्सेस बचाऊंगा, क्योंकि डोनेशन के नाम पे कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाता है, सेक्शन 80G के अंदर आ रहा होता है। तो दोनों की कहीं ना कहीं साठगांठ के थ्रू यहाँ पे हो क्या रहा होता है, सरकार को लग रहा होता है चैरिटी हो रही है, उसके नाम पे हम क्या करने को तैयार हैं, टैक्सेस के अंदर कट लेने को तैयार हैं, लेकिन रियलिटी में चैरिटी हो रही है, शायद नहीं हो रही। तो इससे हम कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि जितने भी NGOs चल रहे हैं, जो भी चैरिटी कर रहे हैं, सबको पकड़ो और रोक दो ये काम। नहीं, अच्छा काम है, होना चाहिए, पर चेक लगाने की ज़रूरत है। जहाँ पे लूप होल दिख रहे हैं लोगों को, जो इंसान एक्चुअली विजन कर रहा है, अगर देखने लग जाएगा सोसाइटी के अंदर कि करने वाले पे और करवाने वाले पे दोनों पे ही एक्शन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली रुकने लग जाएगा। तो सरकार रोक सकती है क्या? हाँ। क्या रोक भी रही है? ऐसा नहीं कह सकते कि रोक नहीं रही है, बिल्कुल रोक रही होगी, पर कितने केसेस पकड़े जाते हैं, कितने नहीं पकड़े जाते हैं, वो स्टेटिस्टिक्स नहीं है टू बी एबल टू कॉमेंट कि अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे लूप होल्स होते हैं जो कि लोग एक्सप्लॉइट करके बचाने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है, मे बी अ सजेशन टू द गवर्नमेंट, क्योंकि भाई सरकार हम लोग के लिए है, राइट? Correct. सजेस्ट तो हम कर ही सकते हैं कि भाई आप एक ऐसा पोर्टल बनाओ जहाँ पे हम आपका हर साल का आपने किस चीज पे, किस इशू पे कितना काम किया, उसका एक डिस्क्लोजर मिल सके हमें। कुछ स्टैट्स हमें अवेलेबल हो। अब जैसे आपने बोला कोई स्टैट्स नहीं है, हमें कैसे पता कितना रोका जा रहा है? तो अगर ऐसा कहीं पे लिख के आए कि भाई हमने इतनी चैरिटीज को रोका जो गलत काम कर रहे थे, बस पैसा बनाने के लिए खोल रखा था, या ऐसे कुछ नंबर्स अवेलेबल हो जाएं, या ऐसा है ऑलरेडी अवेलेबल? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे स्टेटिस्टिक्स से पब्लिक नहीं करते हैं, पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक चैनल बनाओ जहाँ पे ना हर दूसरे दिन किसी ना किसी को पकड़ लिया करो। कभी कोई चैरिटी में विजन करने वाले को, कभी डेवलपर को, रियल एस्टेट डेवलपर को, कभी कोई सोने में एक चोरी अलग कर रहा है। डिपार्टमेंट बना दो। डेली का वो बिग बॉस सॉर्ट ऑफ टेलीकास्ट हो रहा है, लोगों को देखने में मजा आ रहा है, डेली कोई ना कोई विजन करते हुए पकड़ा जा रहा है, एंड पीपल आर गेटिंग दिस कि भाई कुछ हो रहा है, इसको पकड़ा। मैंने बताया था ना, एग्जांपल सेट करते हैं। सो बाय चैनल यू मेंट अ टीवी चैनल? टीवी चैनल, करेक्ट। ओके, टीवी मतलब अ यूट्यूब चैनल। हाँ, एंड पीपल आर वेरी सैडिस्टिक। उनको अच्छा लगता है देखना कि जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत हो भी रहा है। तो रादर ये तो सैडिज्म में भी नहीं आएगा। दिस इज नॉट सैडिस्टिक, दिस इज रादर जस्टिफाइड। उनको लग रहा होता है कि हम सच्चे हैं तो हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा, और जो गलत इंसान है उसके साथ बुरा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली अच्छा करने का मन करने लग जाता है इंसान। मतलब आपको आपकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जो टैक्स पेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड हो रहे हैं बाय नॉट फॉलोइंग इनटू ऑल ऑफ दिस। जो गलत कर रहे हैं वो डर भी रहे हैं। सोसाइटी के अंदर एक मैसेज जा रहा है कि हाँ, गलत करोगे तो फंसोगे। तो दिख रहा है सीधा एक कॉज एंड इफेक्ट। गुड अप्रोच, सीधा एक कॉज एंड इफेक्ट दिख रहा है। आई थिंक दैट कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। आप टैक्स प्रोफेशनल हो, क्या आप लोग को भी डर लगता है कि कोई रेड हो जाएगी, कोई लेटर आ जाएगा, ऐसा कोई हमारे प्रेमाइसेस पे, आपके प्रेमिसेस पे? जी, आई वुडंट गो एज फार एज कॉलिंग इट कि डर लगता है। डर नहीं, बट आई वुडंट से कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा, रेड मारनी है मार लो। मुझे इनकन्वीनियंस होएगी। क्यों इनकन्वीनियंस होएगी? एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अब जैसे मेरे प्रेमाइसेस पे एक अलमारी है, वो अलमारी के पीछे पिलर जाता है, तो अलमारी ना स्कूप्ड आउट है अंदर की तरफ। डिपार्टमेंट को लगेगा कि यहाँ पे पीछे कोई मैंने लॉकर बना रखा है जहां मैंने सोना स्टैश कर रखा है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, इफ इट ऑल माय प्रीमाइसेस आर रेडेड, वो अलमारी भी तोड़ेंगे, वो सोफे भी फाड़ेंगे, वो गाड़ियों की सीट्स भी फाड़ेंगे। उसका कुछ देंगे आपको? उसका कोई हर्जाना नहीं है। मैं डिपार्टमेंट से ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप आए, आपने रेड मारी, रेड मार के हाँ मेरे को आपने 40 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, इसको पे करो, क्योंकि कुछ नहीं पाया गया, मैंने कोई विजन नहीं करी थी। आई कैन नॉट डू दैट। This is not fair, This is not fair, but most cases में ऐसे रेड मारी नहीं जाती। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स नहीं मिलेंगे आपको, ऐसे ज्यादा केसेस नहीं मिलेंगे कि बिल्कुल ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, कोई बेजन नहीं है और डिपार्टमेंट आके रेड मार रहा है, चीजें फाड़ रहा है, चीजें तोड़ रहा है। सॉलिड प्रूफ होता है। हाँ, मोस्टली सॉलिड प्रूफ होता है, रीजंस टू बिलीव होते हैं, तो ही जाके रेड मारते हैं। इसलिए हर केस में नहीं पड़ती, पर अगेन अगर पड़ी तो एक तो ये दिक्कत डैमेज की, दूसरी ये दिक्कत सोच के देखिए आप काम कर रहे हैं और आपके फोन को, लैपटॉप को, सबको सीज करके ले गए हैं वो,
फिर आपका काम रुक गया। काम कैसे करेंगे? वेरी वेरी रुकना पड़ेगा। 30 दिन तो ये बिना किसी क्वेश्चनिंग के, बिना किसी को रिपोर्ट करे रख सकते हैं उन चीज़ों को। उससे ज़्यादा भी रखना है तो परमिशंस होती हैं, लेके रख सकते हैं। तो काम आपका हैम्पर हो सकता है। कैसे करेंगे डिवाइसेस के बिना काम? तो अगेन इनकन्वीनियंस है। मुझे डर नहीं लगेगा क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई विजन नहीं कर रखी है, चाहे कोई माने नहीं माने। लेकिन हाँ। इनकन्वीनियंस कॉज करेगा। बट एज आई सेड, Valid आप point. अगर ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं तो फालतू में डरने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंटेशन सही रखिए, टैक्सेस सही से पे करिए, लीगली सेव करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो डिपार्टमेंट को करना है करने दीजिए, उनको असिस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। वेडिंग्स में मिलने वाले गिफ्ट्स पे क्या टैक्स लॉ है? सो वेडिंग के गिफ्ट इट टोटली डिपेंड्स ऑन किसको मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे ब्राइड एंड ग्रूम की, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि उनके पर्सनल अकाउंट में लें ताकि दिक्कत नहीं आए। क्योंकि वो द लॉ सेज इज कि ब्राइड और ग्रूम को अगर कोई ना कोई गिफ्ट दिया गया है, कोई भी दे रहा हो, उनके पेरेंट्स हों, जो लोग आए हैं, दोस्त। रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो भी दे रहा हो, इनकम नहीं मानेंगे हम। सेक्शन 56(2)(10) के अंदर इनकम नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं करेंगे। पर कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, उसको पेरेंट्स के अकाउंट के अंदर रिसीव कर लिया एंड देन उसको अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवा लिया। मत करिए, फालतू लिटिगेशन में फंसेंगे। कल को जाके वो पेरेंट्स की इनकम में ऐड कर सकते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई थी, आपके अकाउंट के अंदर क्यों आया है, वगैरह वगैरह। तो अपने अकाउंट के अंदर रिसीव कर रहे हैं, जितना रिसीव करना है करिए, कोई लिमिट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है 50,000 की लिमिट है, वो नॉर्मली लिमिट होती है कि नॉर्मली आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। तो हाँ। सारे लोगों से मिला के पर ईयर 50,000 से ज्यादा का अगर नहीं होता तो इनकम में नहीं ऐड होता, नहीं तो होता है। बट मैरिज के केस में देयर इज नो लिमिट। अच्छा, ओके। जितना है रिसीव करिए, लिफाफे दिए गए हैं, जो दिया गया है सब कुछ अकाउंट में डालिए। Jewelry। हाँ, ज्वेलरी दी गई है, जो दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, ब्राइड और ग्रूम के पास रखेंगे, ढंग से रिपोर्टिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर जैसे शादी के अलावा, शादी के 2-3 साल बाद आपके पेरेंट्स आपको एक गोल्ड ज्वेलरी दे रहे हैं, लेट्स से उसकी कीमत है 10 लाख रुपए, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? तो उसमें शादी नहीं बन रही जो बचा पा रही है आपको। जी। शादी एक पॉइंट नहीं बनेगी क्योंकि शादी तो हो गई। बिल्कुल। अब रिलेटिव होने के नाम पे अगेन बचेंगे क्योंकि पेरेंट्स ने दिया है तो पेरेंट्स कभी भी दें। सरकार ने अगेन कह रखा है जितना देना है, जो देना है दो, इनकम नहीं बनेगा। क्यों? इनहेरिटेंस है, सॉर्ट ऑफ अलग अलग चीजें हैं। कहीं भी बच पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। कोई भी अगर ट्रिगर नहीं हो पा रहा पॉइंट, तो अगेन वही 50,000 की लिमिट है। सो लॉ में लूपहोल्स होते हैं। इट्स लाइक बिकॉज आप कितना ही डिस्क्राइब कर दो चीज को, जिसकी वजह से लॉ एक्चुअली बड़ा भी हो जाता है, उसका टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, बट कहीं ना कुछ तो रह ही जाएगा। तो क्या उन लूपहोल्स को यूज करना टैक्सेस इवेट करने के लिए एक वाइज मूव है? क्या लोगों को करना चाहिए ये, अगर थोड़ा बहुत करके किसी को फायदा हो रहा हो तो? थोड़ा ना ये रिस्की एरिया है। ये नॉर्मली ये स्टूडेंट से भी, पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना आपका, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। जैसे किसी को बताओ कि शादी के टाइम पे जो भी आया है तो वो इनकम ऐड नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो अगला सवाल ये आता है कितनी शादियों तक? कोई Wow. 2 शादी कर रहा है, 4 That's शादी कर रहा है, interesting. 5 शादी कर रहे हैं, तो क्या हर शादी पे ये सरकार छोड़ने को तैयार हो जाती है? अब टेक्निकली अगर आप बात करेंगे तो सरकार ने लॉ में नहीं कह रखा कि 1 शादी तक ही छोड़ेंगे, भैया 2 शादी। सरकार कैसे बताएगी तुम कितनी क्वांटिफाई कैसे शादियां करेंगे करो? वो? हाँ, पर कोई अगर इसको टूल बना लेता है, मान के चलिए उसने 12 शादियां कर ली हैं पेपर पे, हाँ, किसी इंसान को पकड़ के लेके आ रहा है, शादी कर रहा है, उस टाइम पे थोड़ी बहुत एविएशन कर रहा है, फिर डिवोर्स, फिर शादी, फिर डिवोर्स, हाँ। फिर शादी। उसने 12 बार कर लिया और उसको लग रहा है उसने क्या कर लिया है, लॉ के अंदर लूप होल ढूंढ लिया है। लूप होल है तो इसको ना सरकार कहती है आप टैक्स एविजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने लॉ तो मान लिया। लॉ कह रहा था शादी के टाइम पे लिया है तो इनकम में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं, लूप होल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी इंटेंट नहीं थी। इंटेंट क्या थी? रियलिटी में कोई शादी कर रहा है तो इनकम में ऐड नहीं करेंगे, गिफ्ट आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है, टैक्सेस दो, रहने दो, शादी का मौका है। तुम उसको पकड़ के अगर बैठ जाओगे, लूप होल को पकड़ के बैठ जाओगे, तो सरकार के पास एक तरीका होता है लॉ को चेंज करने का। और लॉ वो हमेशा ऐसे नहीं करते कि चेंज कर रहे हैं तो आगे से चेंज कर रहे हैं, वो पीछे से चेंज कर देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली उसको इफेक्ट दे देते हैं। तो इस इंसान ने बैक टू बैक शादियां करी हैं, ये सोचा है लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है तो ये तो मेरे को पकड़ नहीं पाएंगे। पकड़ लेंगे वो, अगर उनको दिखा कि यहाँ पे एक इंसान क्या कर रहा है, मोटा टैक्स एवेड कर रहा है, या बहुत सारे लोग हैं जो कि ये वाला काम करने लग गए हैं और उन्होंने बहुत टैक्सेस बचा लिए हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे और एक बार में हर एक को देना पड़ेगा। क्या कोई कोर्ट जाके आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं सरकार ने तो पहले से चेंज कर दिया? कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, मानना पड़ेगा। लॉ के अंदर अगर उन्होंने वाला चेंज करा है, मानना पड़ेगा। आप एविएशन कर रहे हैं, दिल कॉल यू आउट फॉर इट एंड होगा। वोडाफोन केस इसी का एग्जांपल है, हजारों करोड़ों की रिकवरी उन्होंने करने की कोशिश करी, इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर वो केस गया, उसकी एक अलग फाइट हुई, बट दैट इज जस्ट इट वाज 11,000 crores, रफली अराउंड 18,000 करोड़ पहुंच गया था, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सारी चीजें मिला के 10,000 करोड़ तक की रिकवरी थी टैक्सेस की। पर अगेन दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ मेकिंग एनी चेंज जो भी क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव है कि वो कर सकते हैं।
तो लॉ के साथ ऐसे लूप होल पकड़ पकड़ के अगर प्ले करोगे तो कल को जाके फंसने के चांसेस हैं। तो वन ऑफ केसेस में कोई बच भी सकता है, क्योंकि एक बंदे के लिए तो लॉ नहीं चेंज किया जाएगा। कांट से डिपेंड करेगा अमाउंट के ऊपर। बहुत छोटी इवेजन कर रहे हैं तो शायद कोई फायदा ही ना हो, और थोड़ी भी बड़ी कर रहे हैं जो सब्सटैंशियल है, इम्पैक्ट करती है, तो कल को फंस सकते हो। बट लॉ चेंज करना तो टीडियस प्रोसेस है, बट डिपेंड्स ऑन कितनी रिकवरी उनकी हो रही है। हाँ, उनको उनको क्या फायदा फर्क दिख पड़ता है, रहा उनको होगा। उनको हर साल चेंजेस लेके आने ही आने हैं। हाँ, उसमें हाँ, एक और चेंज ऐड कर देंगे। राइट 2 वर्ड्स ही तो ऐड करने हैं शादियों तक, लेकिन लिमिटेड टू हाँ, शादीज, हाँ, और मे बी लिमिटेड टू 3। लिमिटेड टू 3 या इतना गैप होना चाहिए शादियों के अंदर, इतने टाइम तक टिकनी चाहिए शादी, कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। क्या आपको डिससैटिस्फैक्शन होता है कि आपके रेवेन्यूज के लगभग 50% चला जाता है टैक्सेस में? हाउ डू यू फील अबाउट इनकम इट? टैक्स दोनों ऐड जी करके। जी, दोनों ऐड करके। I'd be lying अगर मैं कहूँ कि नहीं मेरे को बहुत खुशी होती है। एंड आई वोंट बिलीव। खुशी तो देखिए नहीं होती है, एंड दैट इज अगेन एमनेटिंग फ्रॉम द फैक्ट कि वो दिखता है कि एग्जैक्टली जितना उसका यूज होना चाहिए फॉर द पब्लिक वेलफेयर वो हो नहीं रहा। अगर हो रहा होता बहुत खुशी खुशी सारे लोग देना चाहते हैं क्योंकि खुद को फायदा हो रहा है, पर वो दिख रहा है कि वो फालतू की इधर उधर चीज़ों में लगाया जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई स्कैम सुनते रहते हैं और कोई भी पार्टी साफ नहीं है, सबके ये अलग अलग कुछ ना कुछ स्कैम्स चलते रहते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट हर्ट्स। फिर आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर करने लग जाते हैं। लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें, कैसा पानी आ रहा है, कितनी टाइम तक बिजली आ पा रही है, बच्चे कहाँ स्कूल जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों में अगर इम्प्रूवमेंट दिखनी लग जाए तो शायद खुशी भी ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। अभी आई फील दैट आई ओ द सोसाइटी टैक्सेस फॉर द इनकम आई अर्न, बट देयर इज नो कंप्लीट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आई वुड से कि हाँ ठीक है खुशी खुशी दे रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं एक गैप है। सेकंड दैट थॉट। क्या सीएस अपने क्लाइंट्स को टैक्स इवेजन सजेस्ट करते हैं? Suggest? अंदर की बात। देखिए आई थिंक ये ना स्टीरियोटाइप थोड़ा पकड़ना गलत है। सीएस करते होंगे, आई एम डाउटफुल। हो सकता है करते हों, कुछ करते भी होंगे डेफिनेटली, कुछ नहीं भी करते होंगे, बट इसको ना आपको थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीएस के अलावा टैक्सेशन की एडवाइस जो है ना दुनिया देती है। आपके आसपास के सारे लोग देते होंगे टैक्सेशन के अंदर, ये करो वो करो, ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं तो ऐसे मैंने तो करता ये हूँ, किया था, मैंने तो ये किया था, कुछ नहीं हुआ, इतने सालों से कर रहा हूँ, इतनी जिंदगी निकाल ली है, तुम क्यों दे रहे हो टैक्सेस हमें तो कभी वगैरह। नहीं पकड़ा गया। हमें तो कभी नहीं पकड़ा गया। दिक्कत क्या होती है, एडवाइस अगर आप सोसाइटी से लेंगे तो वो अकेले ही बता रहे होंगे हमने ये इवेजन करी है, कुछ नहीं होता, कर लो। सीएस क्या कर रहे होंगे, सीएस को पता है कि जो जो आप इवेजन कह रहे हैं, जैसे मेरे को भी क्लाइंट्स आके कहते हैं कि मैं जब बता रहा हूँ कि भाई ये इनकम कमाई गई है, इतने टैक्सेस देने हैं, तो क्लाइंट का रिप्लाई आता है मेरा दोस्त तो कह रहा था ऐसा हो सकता है, इतना नहीं देना पड़ेगा, उतना नहीं देना पड़ेगा। तो मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं काउंटर कर पाता हूँ ये कह के कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये दिक्कतें आएंगी, ऐसे ऐसे पकड़े जाओगे। मुझे पेनल्टीज का आइडिया है और मैं गाइड कर पाता हूँ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाकी दुनिया नहीं करती है गाइड उसके बारे में क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है। और मेरा पॉइंट घूम फिर के वही आ जाता है, जब तक इंसान को बताओगे ही नहीं कि रेड लाइट जंप करने पे 2000 का चालान है, वो जंप करने से डरेगा नहीं। तो सीएस क्या एविजन सजेस्ट करते हैं, हमारे लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप एविजन करें। हम कंसल्टेशन दे रहे हैं, लॉ के बारे में बता रहे हैं, टैक्सेस कितने बनते हैं ये बता रहे हैं, हमारी फ़ी ये वाले काम के लिए है। तो एविजन करना ना करना एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं क्लाइंट की ही कॉल लगती है मुझे। मैं भी अगर आप बताएंगे कि एडवाइस कैसे देता हूँ, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं लॉ के बारे में बता देता हूँ कि भाई लॉ लीगली ये कहता है। अब उसके बाद क्लाइंट क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता, फोर्स नहीं कर एज अ सकते। प्रोफेशनल आई कैन नॉट फोर्स देम कि ये करो। उसके ऊपर चेक रख रहा हूँ कि वो ये चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो एज अ प्रोफेशनल आई डोंट थिंक दैट इज माई जॉब टू डू। माई जॉब इज टू टेल देम कि लीगली दिस इज वॉट यू ओ टू द गवर्नमेंट एंड इफ इट ऑल यू डोंट पे दिस तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, दैट्स अबाउट इट। अब उसमें स्टीरियोटाइप क्रिएट करना कि सीएस तो एविजन करवाते हैं, सोच के देखिए लास्ट टाइम कभी भी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि लीगली मेरे इतने टैक्सेस बनते हैं और आपके सीए ने कहा कि नहीं नहीं इतने क्यों पे कर रहे हो, कम पे करो। कभी नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है, मगर मेरे ख्याल से पहली बात तो ये एक बेनिफिट किसी को ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही लोग करते होंगे, बट आपने बोला ना उनका क्या फायदा है, उस पे बोल रही हूँ मैं। ये हो सकता है कि कल को पकड़े जाने पे नोटिस आ सकता है और फिर और पैसे बन सकते हैं उस केस को फाइट करने के लिए। वो तो देखिए हमारे वो आई थिंक स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे चला जाएगा कि सीए ढंग का चूज करिए, कंसल्टेंट अच्छा चूज करिए। उसमें अगेन स्टीरियोटाइप एक सीएस के ऊपर क्रिएट करना थोड़ा गलत होगा, दैट्स व्हाट आई फील। वो तो एथिक्स की बात है ना, वो तो सीए भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, कोई और प्रोफेशनल भी हो सकता है, जिनके एथिक्स कमजोर हैं वो ऐसी चीजें कर सकते हैं। दैट इज नॉट नेसेसरली एमनेटिंग फ्रॉम योर प्रोफेशन। सीए नहीं सिखा रहा है वो आपको। I swear I have heard this.
I don't remember if that guy was a CA or not, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कोई CA ही आपकी रिटर्न फाइल करे. करेक्ट, एक नॉर्मल टैक्स प्रोफेशनल भी कर सकता कोई भी है. कर सकता है. कोई भी कर सकता है. आई हैव हर्ड दिस कि लोग इस तरह से ऑफर करते हैं, उससे फाइल कराओगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, मुझसे फाइल कराओगे तो मैं कम टैक्स दिलवाऊंगा. एज इफ उसकी चॉइस है कितना टैक्स पे करवाना है उसे. पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है. करेक्ट. तो इसका भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको. सो देयर वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन हु जॉइंड अस आई थिंक 3 years बैक. अप अंटिल देन उनकी रिटर्न्स कैसे फाइल हो रही थी, उन्होंने फीस, जैसे मैंने बताया था ना, काम की बात नहीं करी है, सीधा जिस भी इंसान से फाइलिंग करवा रहे थे, सीए नहीं था वो, उससे फीस की बात करी, कितने में रिटर्न फाइल करेगा. उसने कहा मैं कर दूंगा 1500 रुपये में, 500 रुपये में, जो भी रिटर्न की बात करी थी उन्होंने. अब वो रिटर्न्स कैसे फाइल कर रहा है, पहला क्वेश्चन जो वो कंसल्टेंट पूछ रहा है, कितना रिफंड चाहिए, कितना टीडीएस है जो कि पे हो रखा है. एक्चुअली बहुत कित- कॉमन क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कितना रिफंड चाहिए. उसने कहा भाई 15 लाख मैंने पे कर रखा है, टीडीएस के नाम पे एम्प्लॉयर ने काट रखा है, 12 लाख करवा दे रिफंड, 3 लाख बहुत है. उसने रिटर्न फाइल कर दी. रिटर्न फाइल करवाने के बाद सेकंड ओपिनियन के लिए क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कि आप एक बार देख लीजिए कि इसने सही करा है नहीं करा है. अब मैं गो थ्रू करता हूँ उस इंसान ने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, सुन के देखो आप. एम्प्लॉयर ने कोई एचआरए नहीं दिखा रखी, सैलरी बाइफर्केशन के अंदर कोई एचआरए नहीं है, हाउस रेंट अलाउंस होती है, बिल्कुल भी नहीं है. इन भाई साहब ने 3 लाख रुपए की एचआरए दिखा रखी है कि एम्प्लॉयर दे रहा है और ये पे भी कर रहा है. और एक कोई रेंटेड घर में नहीं रहते, खुद के घर में रहते हैं, कोई रेंट नहीं दे रहे हैं, कोई एचआरए नहीं आ रही है, दिखा दी है, एग्जम्पशन क्लेम कर ली है, और कल को दिक्कत किसको आएगी, क्लाइंट को आएगी. ऐसी रैंडम डिडक्शंस क्लेम कर रखी हैं जो कि पे भी नहीं करा गया, कोई अमाउंट नहीं है जो कि इन्वेस्ट करा गया है, एटीसी एटीजी जो दिख रहा है वहाँ पे क्लेम करा जा रहा है. मैंने कन्फ्रंट करा उनको, मैंने कहा आपने ये जो रिटर्न फिल करी है, जो चीज़ें डाली हैं, ऐसा कुछ होता नहीं रहा, क्लाइंट बता रहा है, तो उनको तो सीधा नोटिस आएगा. तो उनका रिप्लाई क्या आता है, बिल्कुल आएगा. बिल्कुल नोटिस आएगा. मैंने क्लाइंट को बोला था रिफंड दिलवा दूंगा, वो मैं दिलवा रहा हूँ. रिफंड तो आ जाएगा, जो कि उनकी बात सही है. अब क्लाइंट ने ये थोड़ी पूछा रिफंड आने के बाद कल को जाके दिक्कतें भी आएंगी या नहीं आएंगी, वो उसका काम है सोचना. तो मेरे को जिस चीज़ के लिए पे करा जा रहा है मैं उतना काम कर रहा हूँ, क्लाइंट उस चीज़ को रियलाइज करे या ना करे. अगेन आपको रियलाइज करना पड़ेगा, कल को दिक्कतें आएंगी, वो रिटर्न फाइल करके रिफंड दिलवा के निकल लेगा, आपके अकाउंट में रिफंड आएगा और आपको लगेगा चलो पैसे वसूल हो गए, लेकिन पैसे वसूल नहीं हुए, कहानी यहाँ चालू हुई है. और किसी बहुत खराब केस में ये भी हो सकता है कि रिफंड दिलवाने के बाद तुम्हारी कंप्लेन कर दे आगे. कंप्लेंट भी कर सकते हैं वो, उनके पास तो प्रूफ भी है. हाँ, वो कंप्लेन कर दे और वो ही लेटर भिजवा दें आपके घर, नोटिस. हाँ, वो होने के चांसेस मतलब कंसल्टेंट के केसेस में थोड़े कम लाइकली हैं, क्योंकि मैंने बताया ना उसने 500 रुपए के लिए सोच रखा है कितना टाइम लगाना है, 5 मिनट का हाँ, टाइम. ये बात तो वो सही 6 मिनट भी नहीं लगाएगा, वो धड़ाधड़ रिटर्न फाइल करके रिफंड प्रोसेस करवाएगा, और कल को जाके बैक टू बैक नोटिस की जो लाइन लगेगी, क्योंकि अब डिपार्टमेंट को दिख गया है कि आप झूठ कहते हैं, हाँ, अब झूठे हो आप. झूठे हो, हाँ. इवेजन कर रहे हो. तो अब बैक टू बैक हमेशा ही डर में रहिए, नोटिस आते रहेंगे, समन्स आते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहो, जरूर. हमेशा उनके एक तू इधर आ. हाँ. तो वो एक दिक्कत चालू हो जाती है. गुड टैक्स कंसल्टेंट कैसे ढूंढें? ये जो वेबसाइट्स हैं, ये क्या सही प्लेटफॉर्म्स हैं बंदा ढूंढने के लिए जो आपका रिटर्न फाइल करते हैं? देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, और कोई एक सोर्स पकड़ पाना या बता पाना कि यहाँ पे बढ़िया सीएस मिल जाएंगे या फिर यहाँ पे बढ़िया कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे, बड़ा डिफिकल्ट है. जैसे आप साइट्स की बात कर रहे हो, मैंने भी एक बार ट्राई करा था कि देखूँ तो सही क्या एडवाइस आती है क्या नहीं आती है. एंड मैंने उन्हें रैंडमली एक लेमैन की तरह क्वेश्चन पुट अप करा कि ये दिक्कतें आ रही है, मेरे को क्या करना चाहिए. एंड दैट पर्सन वाज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज अ टैक्स कंसल्टेंट, और उनको नहीं आइडिया था कि वो क्या कह रहे हैं. उन्होंने रैंडमली कुछ ना कुछ कह दिया, एंड अगेन वो ये अप्रोच थी कि जो मैंने कह दिया है मान लो रिटर्न के अंदर ऐसी रिपोर्ट कर दो. मैंने जब क्वेश्चनिंग करनी चालू करी कि क्यों, कहाँ लिखा है, मतलब जो भी आप कह रहे हैं लॉ के अंदर ये कहाँ प्रोवाइड करा गया है, मेरे को आइडिया था कहाँ पे क्या चीज़ें कंटेन्ड है. सो आई वांटेड दोज आंसर्स बट आई डिडंट गेट देम, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरे को पता था कि मेरे को पूछना क्या है. तो मैं तो पूछ पा रहा हूँ, जिसको आइडिया ही नहीं वो पूछ ही नहीं पा रहा, वो तो सुन के कर रहा है चीज़ों को. और आजकल तो एआई की हेल्प से कर देंगे आंसर. एआई की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन एआई में दिक्कत क्या आती है, एआई एक डेटाबेस बना रहा होता है लॉ का, और लॉ जो है एवर चेंजिंग है. एआई के अंदर आपको मैं किसी ना किसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत बेसिक चीज़ें हैं. रेट भी गलत आ रहे होते हैं, और वहाँ पे कोई सोर्स नहीं आ रही है, आपको आइडिया नहीं है करंट रेट क्या है, Trust नहीं कर इंटरप्रिटेशन सकते. कैसे करनी है. और एआई का ना एक बहुत बड़ा फंडा क्या है, एआई से बढ़िया आंसर्स निकालने के लिए बढ़िया सवाल देने पड़ते हैं. एआई को सवाल ही नहीं पता होंगे पूछने क्या है, ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएगा वो आंसर उनको. और Right. सवाल कैसे पता चलेंगे, जब पता होगा लॉ के बारे में, लॉ के अंदर क्या क्या कंटेन्ड है, कौन से प्रोविजंस हैं जो हिट कर सकते हैं. आप कह रहे हैं आईटी लॉ के अंदर तो मैं फंसूंगा नहीं, उसने कह दिया नहीं फंसोगे, ब्लैक मनी एक्ट बैठा हुआ है, बेनामी एक्ट बैठा हुआ है, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, कहीं ना कहीं फंस रहे हो.
पूछने के टाइम पे ही अगर क्वेश्चंस नैरो होंगे क्योंकि आपको बाकी चीज़ों का आइडिया ही नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मुझे इंडिया के बाहर अगर पैसा भेजना है, कितनी लिमिट तक मैं उस पैसे को भेज सकती हूँ ऐसे कि मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस ना आए या मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो? तो वो अमाउंट क्या है एक साल के अंदर? आईटी लॉ या जीएसटी लॉ तो कुछ भी नहीं कहता, जितना भेजना है भेजो, लेकिन आरबीआई ने यहाँ पे लिमिट लगा रखी है। ओके, आरबीआई कहती है कि $2.5 लाख तक तो हम पूछेंगे भी नहीं क्यों भेज रहे हैं। कोई इलाज करवाना है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वैसे Yeah, बाहर कुछ fair इन्वेस्ट enough. करना चाहते हैं, $2.5 लाख तक हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। रफली आपके 2 करोड़ रुपए हो गए अगर 80 का रेट लेके चलते हैं तो उतने तक तो आराम से भेजिए। उससे ज़्यादा अगर भेजने पड़ रहे हैं तो मना नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं डिटेल में बताना पड़ेगा क्यों भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो थोड़ी क्वेश्चनिंग हो सकती है। बट अगेन आईटी लॉ जीएसटी लॉ इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। लीगल अमाउंट है, वाइट मनी है, खुद रिसीव कर रखा है, टैक्सेस दे रखे हैं, सरकार कहती है भेजो। ब्लैक मनी है, अगेन लीगल कोई रूट नहीं है जो कि आपको अलाउ करता हो ये सारी चीज़ें कहीं भी पार्क करना। Okay, do you suggest people to go to UAE if they want to save on taxes? आई अगेन फील दैट इट इज़ नेवर जस्ट द टैक्सेस जो भी किसी भी इंसान को इंडिया के बाहर भेजते हैं। मतलब टैक्सेस भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे होते हैं, बट इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा एज अ सोसाइटी, डू यू वांट टू लिव इन इंडिया, डू यू वैल्यू ऑल ऑफ दैट, द रिलेशनशिप्स जो भी आपके आसपास हैं, जो एक कल्चर है एज अ कंट्री, Dense, rich. हाँ, जो खाना पीना है, हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों में आपको फ़र्क फील होएगा बाहर जाते ही। Absolutely. तो अगर अकेले टैक्सेस में दिक्कत आ रही है, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा उसको कम करवाने की कोशिश करिए, उसको चेंज करने की कोशिश करिए, अपना रोल प्ले करिए सोसाइटी के अंदर। आपको ये पावर दी गई है, वोट ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसका कोई ना कोई रोल है, उसको इस्तेमाल करिए। अकेले टैक्सेस सोच के मत जाइएगा। सारी चीज़ें अगर आपको लगती हैं, देयर इज नोबडी हु इज स्टॉपिंग यू, कर सकते हैं। This is a brilliant answer. Yeah. It was lovely talking to you. आज मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने आपसे जो भी सवाल पूछे वो अपने आप को एक ऑडियंस के मेंबर की तरह रख के पूछे, क्योंकि मैं उनकी दिक्कतें समझती हूँ। कहीं ना कहीं जब मैं भी पढ़ रही थी और पढ़ाई के बाद भी आउट ऑफ टच जाने के बाद विद दिस फील्ड होते हैं सवाल जो दिमाग में देयर दीज नैगिंग क्वेश्चंस, बार बार कुछ ना कुछ डाउट आता रहता है। मुझे लगता है यू सॉल्व्ड ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस टुडे and it was a brilliant session. I do not think, and I actually mean it, not because you're my friend, I actually mean it. I'm really happy with what we've been able to accomplish today. नहीं, आई एम प्रीटी श्योर ये जो हमारी नेचुरल कॉन्वर्सेशन के थ्रू एक एक करके चीज़ें निकल के आती रहीं, इसने कहीं ना कहीं मदद करी होगी लोगों की। एंड आई एम श्योर लोग ये अप्रिशिएट करते हैं आपकी जो ऑनेस्टी है इन योर कॉन्वर्सेशंस, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन द वीडियोज एज वेल। Thank you. Thank you very much. So we'll close for today. Thank you. It was your roadmap to understanding taxation pertaining to India. I really hope you found your answers. अगर आपको और भी किसी सवाल का जवाब चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। We've added some details that are going to help you. And अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो there is a number down there in the description of this video. Do check it out. Thank you very, very much. Bye-bye.